Good afternoon, everybody. Thank you for joining today's GRE Verbal Workshop. Our instructor today is Zulfiqar Ali Shaikh, and I'll give the session over to him in a little bit, and then he can introduce himself as well. So my name is Zain Ali, and I'm an Education US Advisor at our Islamabad office in Pakistan. And before we begin, just a little bit about who we are. So what is Education USA? Education USA is a global network under the US Department of State, made up of over 425 international student advising centers in more than 175 countries. We are your official source to US higher education through Education USA advisors that are working with advisees to provide an updated, comprehensive, and unbiased information on higher education in the United States. Next slide, please. Okay, so what is USEFP? In Pakistan, we're a part of the United States Educational Foundation, USEFP, which is also the Fulbright Commission in the country. USEFP promotes mutual understanding between the people of Pakistan and the people of the United States through educational and cultural exchange. We have offices in Islamabad, Lahore, and Karachi, but we are also available for any student that needs support or advising throughout Pakistan through email or call. Other than advising, USEFP also has a programs department that administers multiple fully funded programs, including the Fulbright Scholarship. You can find information on our fully funded programs on our website, usefp.org. USEFP also has authorized prometric testing centers in Lahore, Karachi, and Islamabad. And you can check out our testing facilities on our website, usefp.org. For any questions you have about testing, you can reach out to our testing department and their email is testing@usefp.org. And now I'm going to stop sharing the screen and I'm going to hand it over to Zulfiqar and he can share the screen and start with the session. Thank you. Thank you so much. Welcome, everyone. And again, I would like to ask my USEFP team, how many participants are we having right now, just to get a clue of, and I'll also share my screen. So far, we have 70 some participants, but that number is probably going to increase in the next few minutes. Okay, great. Is my screen now visible? Yes, your screen is visible. In the full option, right? Yes, in the full slideshow mode. Hi, everyone. I think I got disconnected earlier. Am I back again? And the Yes, presentation. you're back. Yes, you're back. Okay. Good afternoon, everyone. I'm Zulfiqar Shaikh, and I'm going to give you a walkthrough of the GRE Verbal section orientation. We will be covering what the test is about, types of questions, and some analytical writing assessment part towards the end, if we could cover. Then the verbal reasoning section is the primary section, reading comprehension and text completion practice questions. And then we will talk about some strategies of how to tackle the verbal questions on GRE. And then some tips about the, and before that, we'll be discussing about the score options, test day options, and some strategies that you can cover. We will also cover the FAQs and how you should be preparing for the test. I'm Zulfiqar Ali Shaikh, and I am a graduate from Cornell University. I've done my undergrad from LUMS, and I went on Fulbright back 12 years ago. I went to the Cornell University, did my master's in international development, and I'm working with the education sector. And my background is basically from starting from public schools and then moving on to LUMS through a scholarship program, and then through Fulbright for my master's to the US. I also work with the candidates on different test preparations as well as their applications. And I used to have a
little bit of a blog, which is no more active. Okay, we covered this part. If some of you were there, some of the slides will be duplicating if they were part of the quantitative section. I always believe that it is important to understand what a test does and what a particular test aims to achieve. That helps you prepare for the test in a much better way, and then also feel the difficulty level accordingly. So I would request if you can check your Q&A tab option and give me a quick, because these virtual sessions are not that interactive. I always want people to be on, just to be awake and also to see how they are perceiving different slides and different content that's coming through. So if you can use your Q&A tab option and tell me, what do you think the GRE test is? What does it assesses and why it is why it's so important? Everybody, please use the Q&A box to write down whatever you have to write down, okay? As you're not allowed to speak on the webinar, so please utilize the Q&A box. Reasoning skills, aptitude test. Yes, it is a test and it's an aptitude test, right? Intellectual ability, not exactly, but yeah, we can look into that. English proficiency to some extent, yes. It's not a language test as such, like IELTS or TOEFL, but your vocabulary and reading skills, right? To some extent, yes. Logical reasoning, that's a good part. Important for applying to the US universities, that's a critical part. Why? Why universities in US require this test? Readiness for a graduate degree, perfect. So that's right. We got some clues. So basically, every test is assessed for either two reasons. One, to give a specific number of seats, limited number of seats available to a larger pool. How do you distribute it? So you can assess it by any means. You can say whoever has a black suit, any criteria. So just if there are 100 people and there are 20 seats available, just to have some criteria to shortlist. But primarily tests like the GRE or other tests are there to assess your abilities on particular range. So GRE is used for your graduate level admissions, and for that, the US universities expect that the students who are coming to their program are able to comprehend and keep pace with the academic program that they are enrolled in. So if a particular program requires a lot of your reading comprehension skills, maybe the GRE verbal is the better part. If they are assessing in the engineering programs or some other data analytics or some other program, they are requiring more on the quant scores. So the quant scores will become more important there. But primarily, these two sections, the quant and the verbal, are there to assess your readiness for a particular program that you are going in the US. In this case, it requires your skills and abilities that are required for the graduate level admissions and studies over there, and assesses your preparedness for a rigorous graduate degree program. So in a graduate program in a US university, a decent US university will require you to read a lot, to understand the context of the things, to understand exactly what was written, to see how the text is progressing, have some logical conclusions about a text or some other reading materials, be able to do what you call a stressed or a rigorous graduate degree program. So the time limitations, all of these parts are somehow assessed in these in the GRE test, the graduate record examination, which is taken by the ETS, Education Testing Service in the US. There's a new test format recently, September onwards, which requires one analytical writing section. Now there are no more two sections. We'll come to the comparison part in the next slide. So now we have 1 30-minute analyze an issue task, which is a writing task. We are not talking too much about this in the today's session.
We are talking about the verbal reasoning section, which has two sections. One is for 18 minutes with 12 questions, and then 23 minutes for the section 2, which has 15 questions. So approximately you have 1.5 minutes per question, which is not exact neat division. Some questions might require maybe just 20 or 30 seconds. Some might require 2 minutes, and depending upon your proficiency as well. But the difficulty level on general is a mixed one, and how it is distributed within the sections, we'll talk about that towards the end. And then you have a quantitative section as well, of course. And these sections keeps alternating between each other. So if there's a section number 1, which is verbal, if it comes verbal, then the next section would be quantitative, and the next would be verbal, and then again quantitative. This is how it goes. The first section always remains the analytical one. Can you please tell whether my mouse shown on the screen is also there, so that I'm sure if where I'm pointing is... Yes, your mouse is also visible. Okay, great. Thank you. I'm not very proficient with this, so thank you for the update. So in the initial GRE test, which was recently updated, there were 2 sections on the writing one, which took quite a lot of time, and then it exhausts you for your energy for the rest of the sections. And then there used to be a 40-minute each reasoning section, then a 40-minute each verbal reasoning and a verbal quantitative, and then the overall time was a lot. And there used to be an unscored section, which is no more the case. Is the last column also visible, or my screen hindering that? Which last column are you talking about? The right extreme right column. The total time column? Yeah. Yeah, we can see that. Okay, so my screen was giving me some. Okay, so great. So there's no more of this unscored one. The unscored section used to work for the research purposes. If I'm designing a test, it used to be a very rigorous exercise for the GRE test designers, and they used to give final versions of their draft questions in an unscored, unannounced unscored section, so that the candidates do not know that whether this section is going to be scored or not. This way, they can ensure that the student is taking the test as seriously as the unscored and the scored ones. So this way, they were able to see how difficult the questions were. Are they culturally sensitive and this and that? So a lot of research used to go into that, which is no more the case for the section, but they still do a lot of research with the students in designing the test. Subsections of the analytical writing, there's only one section. And then the verbal reasoning, you have a reading comprehension part, you have a text completion part, and you have a sentence equivalence question. So these are the 3 different kinds of subsections within the verbal that you have to do. We will be talking about each of these in the coming slides. So in the reading comprehension, description of the reading comprehension questions is very important. Let's look into this. What are there can be options that you have to select a single answer. So it's a multiple choice question, but you have the option to select only one. Or there can be another option, the second one that you see, select multiple correct answers. So there were, let's say there are 4 or 5 options coming up, and then you have to select which of these, all of these, or some of these are the correct options as per the stem of the question. And then you have to select within a sentence. So in the reading comprehension, these are the 3 types of questions that you will be getting. That within a text, you will be asked a question. I'm talking about the 3rd type of question in this one, where you will have to pick a sentence, that which particular sentence within the given text was referring or making suggestions towards whatever the question is stemmed with. We will be looking into this as well. And then types of passages. Within the reading comprehension, the types of passages can come from all of these subjects. And this is the official GRE website and other materials that provide you with this information. It's not limited to this, but 80 to 90% of the times, all of the text would be related to humanities related subject matters, social sciences related subject matters, and natural sciences subject matter.
And by the way, because this reading comprehension or the GRE test is your general ability to comprehend and engage with the text, you do not have to have a prior knowledge of these. And anyone with the prior knowledge of these is not necessarily going to get an edge for that. So uh, these subject matters are used just for the purpose of giving you some reading context. And then accordingly, they will assess your reading abilities. How well are you able to read, comprehend, and engage with the text? What do we mean by engagement? We'll come to that part as well. And then common question types you have either incomplete statements according to the sentence, this will be the case, and then there are options, or the questions will be all of the following are correct except this, or there will be a questions like most likely questions. So you have to make your inference about the text that you read, how much you understand, and based on that, the question will be most likely this particular next statement is correct or wrong or whatever it is. So you don't have just typical grade 5 or grade 8 level reading comprehension where all the information is available within the text. It is mainly about if you are able to understand and engage with the text, you will be able to make some inferences based on that. There will be different scenarios. For example, the reading is about some geological survey. And based on that, some information was given, but the other information you can infer yourself. The question will be asking about some inferential questions. That, okay, you have now understood this text. Tell us whether this can be a possible likelihood or a statement can be true or false, or what particular new evidence the author of that text passage would agree or disagree with. So all of that will be coming up. Let me just quickly take a look. If you have any questions in between, you can share and I'll see if I could respond them within the passage, or we can then come towards the end on the question answer section. Hold in the correct timeline. Yeah, we did that. So, okay, let's do this passage. Let's do some exercise. This is a reading comprehension passage. If you could all take some time and read this. It's about the role of magazines in the 19th century. Were they doing something? Or so your first reading, the trick here is that your first reading should just be a superficial one. Even if you're not able to grasp all the content or the tones or the conclusions coming out of it, that's fine, because this will give you a basic understanding of the text before you jump into the exact question. And let's see what the exact question in this case is. Okay. In the context of this particular text, accorded, which is in line, and by the way, you will have fixed lines given there in the test. So all of these will be numbered from 1, then 2, 3, 4 will be assumed, then 5, and then 6, 7, 8, 9 would be assumed, and then 10 and so on. So you will have a line referencing as well, so that the questions can refer to exact statement. For example, the word accorded can be asked for. So this is just a question type in which you will be seeing that how a question can refer to the passage and just ask about a particular word and not the entire text of it, which is coming up. Okay, we'll come to this question. We have another question in which we have to pick all the correct answers. You see, the question says 3 answer choices are there and you have to select all that apply. The actual question statement is that for the following questions, consider each of the choices separately. Consider each of these separately and then select all that apply. What difference does it make? The difference that it makes is that in a multiple choice question, single answer, you have a 20% chance out of the 5 options you have that any of these options can become correct. And even a random guess would give you a 20% chance, not anymore with the all that apply MCQs. So if only A option is correct,
or only B, or only C. These are three options. And then either it can be AB, BC, AC. These are three other options, and then all of these. So there are in total 7 options here that you can pick from. So the chance of error is limited in these multiple pick options. A tall tree can transport 100 gallons of water a day from its roots deep underground to the tree top. Is this movement propelled by pulling the water from the above or pushing it from below? The pull mechanism has long been favored by the most scientists. First proposed in the 1800s, the theory relies on. So this is a theory that is coming up. So what's happening is that you have to read the text and engage it. When it says that the first proposed, the theory relies on this. This theory that came in 1800, that it is being pushed, came in 1800, and it says that the water not commonly associated with the fluids. Its tensile strength, instead of making a clean break, water evaporating from the tree top tugs on the remaining water molecules, with the tug extending from the molecule to molecule all the way down to the roots. The tree itself does not actually push or pull. All the energy for lifting the water comes from the sun's evaporative power. So this is one of the theories. Anyone who's aware about botany or the plant sciences may have a much better understanding what is a conclusive statement of how the water is taken from the roots to the stem and to the leaves, will have no edge, or it will be stupid to actually use that knowledge. All of the information that you require is based on this text, which is given right here. So this is not a general knowledge test so that anyone with a better knowledge of plants would be able to answer it better. In fact, I've seen instances where your additional knowledge or expert knowledge on a particular subject matter may actually confuse you, because your mind plays tricks with you that, okay, you know the better knowledge, but that was not given in the passage. So all of the answers must 100% be based on your passage. Can we use the chat option in the question and answer section to see what options do you think are correct? Yeah, they can use the Q&A box to put down their correct options or whatnot. Yeah. Thank you. So please. The question is, which of the following statements is supported by the passage? The pull theory is not universally accepted by the scientists. The pull theory is not universally supported by the scientist. Whether from this text we can say that yes, definitely this is a right option. And then the second option is the pull theory depends on one of water's physical properties. Okay, we will see if that is available. The third option is the pull theory originated earlier than did the push theory. We know something was there about the timelines. About option number 3, we are seeing first proposed in the 1800s, the theory relies. Which theory? The pull mechanism theory. You see, pull mechanism has long been favored by most scientists. It's favored by most scientists, not all scientists. B, B, A, B, A, B, A, C, C. Okay. Let's start with the C option. You can start with any option, by the way, that's not a problem. This seemed to me a little easier. The pull theory originated earlier than did the pull. There's a timeline associated with the pull theory. Why? Because the sentence itself does not say anything about the pull here. The first proposed in the 1800, the theory relies. The theory means this theory is being referred back from some previous sentence, which was the pull mechanism has long been favored by this and that. So the pull mechanism theory is the theory here, and that came in 1800. So we know about the timeline of the pull theory mechanism, but we do not know anything about the push mechanism. So the comparison is not made in the sentence. So if someone is aware about it from their previous knowledge, the expert knowledge or whatever you call it, that will not be used.
You will only be doing whatever is available. So the C option is right away out. Let's see what else are the signals. You see these 4 tiny underlines that I've done? The pull mechanism has long been favored by most scientists. The pull, and the option number A says, the pull theory is not universally accepted by scientists. It does not have to say by all scientists. When it says universally accepted, it means all scientists believe in that. So is this a statement correct? Yes, this is correct. Why? Because the statement says, and this is how GRE tries to play with your understanding. We know from the text that it says the pull mechanism has long been favored by most scientists. And from this, what we can infer is that not all scientists. So there are some scientists who do not believe in the pull mechanism theory. And if that is the case, the statement on option A says the pull theory is not universally accepted by scientists. This is correct. You do not have to get confused with not here. The pull theory is not universally means maybe out of 100, even 99% believe this. The one scientist who does not believe in it will make this statement correct. Why? Because universal acceptance would mean that everyone believes that. Okay. So this option is definitely correct. What about option B? The pull theory depends on water's physical properties. Let's see how. The B option, property of water. First proposed in this, the pull theory relies on, so the theory, I'm reading this as pull theory, and this is your reading ability, that the theory should be read as pull theory because they would refer to pull. So the pull theory relies on the property of water, not commonly associated with other fluids or fluids, meaning by other fluids. So it is definitely a physical property of water, which is then supporting in whatever mechanisms. You do not have to understand which property and how that property affects the pull theory. You do not have to understand that. All you need to understand is that some physical property of water is affecting the pull theory or supporting that. And it depends on that. So this statement that becomes correct. And in the next sentence, in the next explanation of extension of this sentence, we are also seeing which particular property, the tensile strength. Whatever it is, you do not have to understand that, but it's basically the strength of the plant to hold itself. So the option A is a correct option, and option A is correct because the pull theory has long been favored by most scientists, not all scientists. Now the additional part here. If anyone picks option A, as most of you picked up, and does not pick option B, the entire answer would be considered incorrect. Or if someone picked A and C, again, because C is not the right option and picking it would make your option A correction also go void. So you have to pick all and only those correct options, which in this case are A and B. Unless you say A and B, the answer option would be correct, considered incorrect, and there will be no partial credits for picking up one of the right options. Okay. Let me see. A and B then. Yeah. Okay, now we are talking about how do you select a passage? What can be the questions of select within the passage? So the question here is, in which sentence of this passage does the author provide examples that reinforce an argument against a critical response cited earlier in the passage? You must understand the question's stem first before jumping into this paragraph. In which sentence of the passage does the author provide examples? So he or she is asking in the passage that we'll just see, where specifically in which particular sentence within the passage. And by the way, passage can be 1 paragraph, 2 paragraph, 3 paragraph. A reading comprehension passage on GRE would typically be from 1 paragraph to 5 paragraphs. And if there are 5, there will be smaller ones. But the entire thing, either it is 1 paragraph or 5 or 3 or whatever, it's called a passage. So the passage
in which particular sentence of that passage does the author provide examples that reinforce an argument. So it seems like an argument will be reinforced through some particular examples against a critical response, against another argument, which may be in the air or in some other book. No, it is against a critical response cited earlier in the passage. So there will be some response cited before that particular part, and then the next part would try to go against it, and then some examples will be used, and that example sentence you have to pick. Let's read. You can take 2 minutes to read this passage. In Resin in the Sun, it means that it's some particular novel, story, poem, or whatever we'll come to know about. Lauren Hansberry does not reject integration of the economic and moral premise of the American dream. Rather, she remains loyal to the dream. Okay? Some author, Hansberry, would remain loyal to the American dream proposition realistically at its incomplete realization. So the dream she believes in, but its realization, it seems she does not believe in that. Once we recognize this dual vision, we can accept the play's ironic, so it's a play, by the way, ironic nuances as deliberate social counterparts. Go ahead. Once we recognize this dual vision, we can accept the play's ironic nuances, Hansberry, rather than the unintentional irony that Bixby attributed to the work. Indeed, a curiously persistent refusal to credit Hansberry with the Hansberry, for example, not easily reconcile Hansberry to intense concerns for the race of the real life. But the play's complex view of the play, self-esteem, and solidarity. It's quite a complicated one, right? If we are going to divide this passage, let's say sentence number 1 here, sentence number 2 from once till you see how long these sentences are. And this is where the complexity of reading is being judged. And then you have 3 till here, and then you have 4 till the end. So there are specifically 4 sentences, very long one. Can we use the Q&A option to see what are your options? Is it sentence number 1, 2, or 3, or 4? Where does the examples to reinforce the argument against a critical response? Line 13. Okay. Okay, so that's third sentence, right? We can look into that. What I'll be doing is that I'll also take this passage for some other purposes. And let me just get a little unconventional by doing one more thing. This 1 or 2 hour session would not be, it's just an orientation. It will not prepare you. But how should you prepare, and what resources and what smartness should you use, and how you should engage with the text? These are the qualities which you will have to develop at your own. And how you can do that, I'll just do one bit here. I'll just share my own screen as well. But if I can get more responses, or maybe we can come to that a little later. Let me see, what am I sharing? I'm sharing a presentation. So why don't we share the screen? Okay, by sharing the screen, the problem would be, okay. Let me use ChatGPT. And what I'm saying is that, what do you mean by active engagement with the text? Give me some examples. Okay, so you're asking, and before that you can say, I am preparing
for GRE Verbal so that it knows what particular context you are coming from. And let's see what the response is. Let me. Okay. So you can, this is, I'm doing this for the purposes of how you should, when you come across a different phrasing or different approach, how you can do that, and how you can use this particular approach in getting the best out of the AI systems as well. Because the practice material and other things can also be very, very helpful from here. For the ideal practice, of course, you have to go to the verified, properly assessed levels of the GRE practice questions. So it's an active text is active engagement with the text in the context of GRE Verbal involves reading passages or sentences with a purpose, interacting with the material. So we are talking about the content that is written here and understanding the nuances of the language. Why nuances of the language? I'll just give you an example using the same text so that you are able to understand. In this, you have to understand the annotations. You have to ask the questions as to where the central idea is going, what is the purpose, what is the tone, and then you have to make some predictions. So if the sentence is getting completed at some point and the next word is giving you a signal starting off that however or this and that, you are able to see if it says however, it is departing from its previous stated statement or whatever the argument was being proposed, and then summarizing it. This is how you actively engage. And let me show you how this particular text should be. So we are spending maybe next 10 minutes on this particular single passage to see. Okay, I hope this is readable. You see, this is the first sentence. You have to, if it would have been a longer sentence, or if I'm giving you some ideas about how to then put in a lot of effort to see how you engage with the text, how you should be taking general reading, not just reading comprehension or questions of reading comprehension, general reading at the level of GRE. So there's a play called Resin in the Sun, whose author seems to be Lauren Hansberry, does not reject integration of economic or moral premise of the dream, of the American dream. Rather, she remains royal. Do you know how critical it is to then engage with the text? From just this beginning, from just this simple beginning, I can tell where the paragraph might then actually move in this or that direction, but at least not in 100 other directions. How? It seems that Lauren Hansberry does not reject. So why would you say does not reject? If she does not reject, you can say she proposes or propagates integration of economic and moral promise of the American dream. आप ये कह रहे हैं कि मैंने पानी पिया और मुझे कोई कहता है कि मैंने पानी नहीं पिया, और ऑथर जो इस पैसेज का ऑथर है वो आके कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि जुल्फिकार ने पानी नहीं पिया. जब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जुल्फिकार ने पानी नहीं पिया, तो इसका मतलब है कि ऑथर ऑफ दैट टेक्स्ट इज टेलिंग यू कि जुल्फिकार हैड दैट वाटर, ही ड्रैंक दैट वाटर. लेकिन आप इस तरह नहीं कह रहे. एंड बिकॉज दिस इज अ प्रोफेशनल राइटिंग, यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि जुल्फिकार ने पानी नहीं पिया, इससे आपको जो एक एक्टिव एंगेजमेंट है रीडिंग की, वो ये आनी चाहिए कि देयर मस्ट बी सम आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट कि कुछ लोग कह रहे होंगे कि जुल्फिकार ने पानी नहीं पिया. Similarly, in this one, it seems like Lauren Hansberry पे कुछ criticism होगा कि she rejects the integration of economic and moral promise of the American dream. लेकिन इस पैसेज का राइटर ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है. ठीक है, तो अमेरिकन ड्रीम पे इसका मतलब है रोलन हैंसबरी बिलीव करती है, लेकिन कोई ना कोई नुएंस, कोई ना कोई सटैलिटी है आगे जो वो एक्सप्लेन करेगा. दिस इज हाउ एज एन एक्टिव रीडर ऑफ दिस पैसेज, जब आपकी ये प्रैक्टिस 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीना 100 दिन चलती रहेगी, तो दिस इज हाउ यू विल बी नेचुरली एंगेजिंग विद द टेक्स्ट. एंड दिस एबिलिटी कम्स not necessarily by reading GRE passages. It is
your ability developed over the years, 5वीं क्लास, 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, and your general readings. This is how they will be coming up very relevant. क्या आप टेक्स्ट के साथ इंगेज किस हद तक करते हैं? अच्छा, ऐसा अगर नहीं है तो फिर कैसा है? रादर, अब ये एक टर्निंग पॉइंट, ठीक है, रादर इज अ टर्निंग पॉइंट विच सेज के ना सिर्फ ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है उसकी जगह ये है कि शी रिमेन्स लॉयल टू दिस ड्रीम व्हाइल लुकिंग। अच्छा, वो इस ड्रीम के साथ, अमेरिकन ड्रीम ये है कि आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि हर इंसान जो है ना वो कुछ ना कुछ करके पा सकता है, अपनी एफर्ट लगाए और जो भी उसकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज चाहिए वो ले सकता है, एंड एवरीवन कैन डू दैट। आप ब्लैक हैं, वाइट हैं, जो भी एथनिक बैकग्राउंड है, सोशली प्रिविलेज्ड हैं या नहीं है, अमेरिकन ड्रीम अलाउ करता है। ये अमेरिकन ड्रीम है। उसकी बैकग्राउंड नॉलेज की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास होगी तो यहाँ पे रिलेटिवली थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। एंड बिकॉज दिस टर्मिनोलॉजी, इट्स नॉट एन एक्सपर्ट नॉलेज, इट्स जस्ट जनरली बीइंग वेरी actively understanding about different major themes in the global writing domains. Okay. She remains loyal to this dream while looking realistically at its incomplete realization. इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये सारे सेंटेंसेस पीछे कर दूं तो मुझे 4-5 चीजें यहां से पता चल रही हैं इस एक सेंटेंस से। लोरेन हैंसबरी के बारे में वो पॉजिटिव टोन रखने जा रहा है जो टेक्स्ट वाला लिख रहा है, और वो उसको डिफेंड करने जाएगा, इट सीम्स, क्योंकि कुछ लोग, अभी तक ऐसी कोई चीज लिखी नहीं हुई कि उसके खिलाफ है, लेकिन जो लैंग्वेज की फ्रेजिंग है दैट टेल्स अस कि देयर इज अ क्रिटिसिज्म अगेंस्ट लॉरेन हंसबरी दैट शी, आई एम अज्यूमिंग शी इज नॉट, आई एम अज्यूमिंग कि ही नहीं है, शी है, बाय द वे। अदर देन दैट ये क्लियर है कि कुछ क्रिटिसिज्म उस पे है कि वो अमेरिकन ड्रीम पे बिलीव नहीं करती, लेकिन वो ये कह रहा है कि ना सिर्फ वो बिलीव करती है, वो उसकी इनकम्प्लीट रियलाइजेशन पे देखती है उस प्ले में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसके प्ले में कहीं ना कहीं कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कहते हैं कि अमेरिकन ड्रीम पूरी तरह रियलाइज नहीं हो सका, और हो सकता है उसकी कोई रीजंस नहीं हो। सो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज नॉट डायरेक्टली रिटन इन दिस वन सेंटेंस ऑफ दिस पैसेज ऑफ 3 other sentences, लेकिन हम एक्टिवली इंगेज करके हम इसको कर पा रहे हैं रियलाइज। वंस वी रिकॉग्नाइज दिस डुअल विजन, ये डुअल विजन क्या होता है? मैं ये कह रहा हूं कि जी पाकिस्तान बना था ताकि मुसलमानों के लिए एक बड़ा जबरदस्त सा मुल्क बने, लेकिन मुसलमानों की अपनी यहाँ पे फ्रीडम्स ये हैं और वो हैं, और इस तरह की अगर मैं को बात करूं, या माइनॉरिटीज को हम राइट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इस तरह की को बात करूं, तो ये डुअलिटी है। इसका मतलब है कि मैं मान रहा हूं उस बिलीफ पे, लेकिन मैं कुछ लिमिटेशंस डाल रहा हूं, जो कि इस केस में लोरेन के बारे में वो कहता है कि वो इसकी इनकम्प्लीट रियलाइजेशन अबाउट द अमेरिकन ड्रीम्स, इनकम्प्लीट रियलाइजेशन वो बात करती है। इसका मतलब है कि वो अमेरिकन ड्रीम को मानती है, मतलब उसको आइडियल मानती है, लेकिन उसकी इनकम्प्लीट रियलाइजेशन के बारे में कोई शी इज बीइंग नॉट वेरी सपोर्टिव ऑन दैट। सो दिस इज अ डुअल विजन। तो ये डुअल विजन का जो लफ्ज है ये इसलिए आया है कि वो अमेरिकन ड्रीम पे बिलीव करती है विद सम लिमिटेशंस। तो ये डुअलिटीज है। वी कैन एक्सेप्ट द प्लेज आयरॉनिक नुएंसेस। जब हमें ये कहते हैं, समझ आ जाती है कि इसमें ये डुअलिटी चल रही है, तब हमें प्ले की जो आयरॉनिक नुएंसेस है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आयरनी के थ्रू उस इनकम्प्लीट रियलाइजेशन को प्रोपेगेट करती है। तब हमें लगता है, जब हम इसको मानते हैं कि ये आयरॉनिक नुएंसेस जो आई हैं, या कोई भी इस तरह की जो इनकम्प्लीट होने की बातें आ रही हैं, वो डेलिबरेट है, ऑथर ने उनको डेलिबरेट सोशल कमेंट्री के तौर पे बाय हैंसबरी डली हुई है, रादर देन अनइंटेंशनल। इसका मतलब है जो क्रिटिसिज्म है हैंसबरी पे कि उसका जो अमेरिकन ड्रीम के बारे में लगता है बिलीफ स्ट्रांग नहीं है, और उसमें जो राइटिंग में इस तरह की चीजें आ गई हैं वो अनइंटेंशनल है, वो भी नहीं है। तो ऑथर ये कह रहा है कि वो इंटेंशनल है, वो डेल। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड अ टेक्स्ट जो कि अनइंटेंशनल नहीं है। आयरनी दैट बिग्सबी एट्रीब्यूट्स टू द वर्क। मैं द पे बहुत ज्यादा फोकस करूंगा। ये देखिए, द वर्क, विच वर्क? कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्सेस? मैं काफी देर से बोल रहा हूं, सो आई वांट टू, ये कौन से काम की बात हो रही है? द वर्क किस वर्क को रेफर कर रहा है? प्लीज यूज योर चैट बॉक्सेस। आ नहीं, द अमेरिकन ड्रीम इज एन आइडिया, इट्स नॉट अ वर्क। अभी तक हमें पता चला है कि लोरेन है, लोरेन के कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं, और फिर उसके बाद एक नाम डुबॉय आ रहा है, वो हम अभी आते हैं, बिग्सबी आ रहा है अभी।
ठीक है, बिग्सबी के काम की बात हो रही है। अमेरिकन ड्रीम, नहीं नहीं देखें, अमेरिकन ड्रीम इज एन आइडिया, जनरल आइडिया। उसके बारे में एक प्ले लिखा हुआ है जो कि रेजन इन द सन है। तो ये लोरेन हैंसबरी के ही काम की बात हो रही है। हर वर्क इन राइटिंग, एग्जैक्टली, आप जरा क्लियर लिखें कि तो हैंसबरी इज वर्क की बात हो रही है, एग्जैक्टली द वर्क। ठीक है, हाँ, तो बात ये हो रही थी कि बिग्सबी एट्रीब्यूट करता है कुछ चीज लोरेन के रेजन इन द सन वर्क के बारे में, जो प्ले है उस, मतलब ये लिटरेचर के वर्क की बात हो रही है। लिटरेचर के वर्क रेजन इन द सन जो कि हैंसबरी ने लिखा है, उस पे जो क्रिटिसिज्म बिग्सबी का है वो ये है कि उसमें कुछ अनइंटेंशनल आयरनी डाली हुई है। और ऑथर क्या कहना चाह रहा है कि नहीं, अनइंटेंशनल नहीं है, इंटेंशनल है। अब आप देखें, ये अभी दूसरे सेंटेंस में हमें और क्लैरिटी जरूर आई है, लेकिन हमें पहले सेंटेंस में ही कुछ ना कुछ आइडिया मिल गया था। दिस एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट के आइडिया किस तरह फ्लो कर सकता है, दैट विल शेप योर रीडिंग, जनरल रीडिंग मच बेटर। और वो कंप्रीहेंशन फिर आपकी इस पैसेज को इंप्रूव करने में, टेस्ट का अच्छा स्कोर लेने में, और बेसिकली टेस्ट का काम है कि आपकी ग्रेजुएट लेवल के काम में जो बहुत ह्यूज पैसेजेस या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पैसेजेस आएंगे, देखें ये बच्चों वाले पैसेजेस नहीं है कि 3-4 लफ्जों के या 8 लफ्जों के, पूरे पूरे 25-25, 30-30 लफ्जों के ना सिर्फ सेंटेंसेस हैं, बल्कि उन सेंटेंसेस का आगे पीछे टोन, फ्लो, ये सारी चीजें, एटीट्यूड्स शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर हम एक्टिवली इंगेज कर पाएंगे तभी होगा। अभी तक हमने 2 सेंटेंस कंप्लीट किए। ओके, अच्छा, इंडीड। अब आप ये देखें कि हो सकता है ऑथर कहता है कि ऐसा है वैसा है, 2 सेंटेंसेस में बात हो गई है, लेकिन आगे हो सकता है वो क्या, लेकिन थोड़ा सा मसला है, या आगे वो कह सकता है नहीं आप ये देखें। इंडीड से हमें ये मकसद मिलता है कि ऑथर अपनी उसी टोन में, विच इज द डिफेंस, ही इज डिफेंडिंग लोरेंस वर्क, वो उसी डायरेक्शन में आगे जाएगा। Are you getting my point? Can I have some chat responses on this, whether I'm making sense? Oh, please, unnecessary chat से आप ना करें। ओके, ठीक है, तो इंडीड इज गोइंग टू, अदर पीपल प्लीज एक्टिवली रेस्पॉन्ड करें ताकि हमें थोड़ा समझ आए कि वी आर ठीक है। तो इंडीड जो है वो, इसका मतलब है इट्स गोइंग टू सपोर्ट द प्रीवियस आर्ग्यूमेंट दैट आवर राइटर ऑफ दिस पैसेज का जो राइटर है वो उसको आगे और सपोर्ट करने जा रहा है सेंटेंस में। क्यूरियसली परसिस्टेंट रिफ्यूजल, क्यूरियसली परसिस्टेंट रिफ्यूजल, कोई रिफ्यूज कर रहा है, परसिस्टेंटली रिफ्यूज कर रहा है, ठीक है ना, इनके अलग अलग मतलब है। परसिस्टेंट रिफ्यूजल हो रहा है, और वो परसिस्टेंट रिफ्यूजल ऑथर को क्यूरियस लग रहा है कि यार मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों है, वो क्यूरियस है। तो ये क्यूरियोसिटी ऑथर की है, या ऑथर की तरह के सोचने वाले और लोगों की है। परसिस्टेंट रेफ्यूजल है किस चीज का, टू क्रेडिट हैंसबरी विद द कैपेसिटी फॉर इंटेंशनल आयरनी। क्या जबरदस्त बात लिखी है। इसका मतलब है कि जो लोग डिसरिगार्ड करते हैं कि ये जो अनइंटेंशनली हैंसबरी ने अपनी चीजों में आयरनीज लाई हैं, वो इसलिए लाई हैं, इसका मतलब है कि वो लोग शायद बिलीव करते हैं कि इतने सॉफ्ट और सटल अंदाज से हैंसबरी की कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो इंटेंशनली इन आयरनीज को ले आए, वो गलती से आ गई हैं। तो ऐसा वो कह रहा नहीं है कि वो लोग जो परसिस्टेंटली रिफ्यूज कर रहे हैं, जस्ट सी वेयर आई एम हाइलाइटिंग परसिस्टेंट रिफ्यूजल टू क्रेडिट हैंसबरी, कि हैंसबरी को क्रेडिट किया जाए विद द कैपेसिटी फॉर इंटेंशनल आयरनी, कि उसके अंदर इंटेंशनल आयरनी की कैपेसिटी है, इसको वो रिफ्यूज कर रहे हैं, उस कैपेसिटी को डिनाई कर रहे हैं। इसी वजह से कह रहे हैं, हो ये रहा है कि हैज लेड सम क्रिटिक्स टू इंटरप्रेट द प्लेस थीमेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स। थीमेटिक कॉन्फ्लिक्ट मतलब वो एक बात कर रही है फिर दूसरी दूसरी बात उसी के कॉन्फ्लिक्ट में कह रही है। तो जो प्ले के अंदर थीमेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स आपको नजर आते हैं, वो जिन लोगों को ये नहीं समझ आती कि हैंसबरी के अंदर ये कैपेबिलिटी, वो उसको मेयर कंफ्यूजन, कंट्रडिक्शन और इक्लेक्टिसिज्म के तौर पे लेते हैं कि ये इसका एक यूनिक अंदाज है जो कि बात को कंफ्यूज करने की तरफ जाती है, इसलिए वो उसको क्रेडिट नहीं दे रहे। ठीक है, अब यहां तक हमें बात समझ आ गई। अब हम जाते हैं अपने 4th सेंटेंस पे। आइजक्स फॉर एग्जाम्पल कैन नॉट इजीली रिकॉन्साइल हैंसबरीज। आइजक्स कोई एक और ऑथर है या क्रिटिसाइज करने वाला है, वो ये कह रहा है कि वो रिकॉन्साइल नहीं कर पा रहा हैंसबरीज इंटेंस कंसर्न फॉर अ रेस विद हर आइडियल ऑफ ह्यूमन रिकंसिलिएशन।
इसका मतलब रेस के बारे में कोई इंटेंस कंसर्न है हैंसबरी का, वो उसके साथ आइजक जो है वो रिकंसाइल नहीं कर पा रहा। चौथा सेंटेंस और ये है, पांचवा ये है। बट विद द प्लेस कॉम्प्लेक्स व्यू ऑफ फ्ले ओ सॉरी ओहो बट विद द प्लेस कॉम्प्लेक्स व्यू ऑफ ब्लैक सेल्फ एस्टीम। इसका मतलब प्ले के अंदर हैंसबरी जो है वो ब्लैक सेल्फ एस्टीम के बारे में को बात करी और उसका बड़ा कॉम्प्लेक्स व्यू ले रही है। एंड ह्यूमन सॉलिडेरिटी एज कंपेटेबल इज नो मोर कंट्रोडिक्टरी। वो ये कह रहा है कि वो जो कह रही है कि ह्यूमन सॉलिडेरिटी होनी चाहिए या ब्लैक सेल्फ एस्टीम एक अलग चीज है, वो कंट्रोडिक्टरी नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट जंपिंग इनटू एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, हमें उस टेक्स्ट के बारे में नहीं पता। जितनी लाइंस यहाँ लिखी हैं वी विल जस्ट बी टॉकिंग अबाउट दैट। एंड इट सेज कि प्ले के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज हैं ब्लैक सेल्फ एस्टीम की और ह्यूमन सॉलिडेरिटी की, वो कंपेटेबल जिनको नहीं नजर आती, कॉन्ट्रोडिक्टरी नजर आती हैं। देन डुबोइस फेमस वेल कंसिडर्ड आइडियल ऑफ, तो डुबोई का एक और ऑथर है जिसका एक फेमस वेल कंसिडर्ड आइडियल है एथनिक सेल्फ अवेयरनेस का। उसी तरह के वर्ड्स हैं, सिर्फ चर्न आउट हो रहे हैं डिफरेंट अंदाज से ताकि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रीडिंग को असेस किया जाए। coexisting with human unity, or Fanon's emphasis on ideal internationalism that also accommodates national identities and roles। ये है वो एग्जाम्पल्स जिसके बारे में वो क्वेश्चन बात कर रहा है। कैसे हमने जब इस सेंटेंस को थोड़ी देर के लिए अगर आप भूल जाएं, तो हमने अभी तक जितने सेंटेंसेस कहे उसमें हमने एक जेनेरिक बात की कि हैंसबरी की अंदर उसके जो काम है उसके अंदर कंट्रडिक्शंस कुछ नजर आती हैं, लेकिन वो इंटेंशनल है। और कुछ ऑथर जो उसको अनइंटेंशनल कहते हैं, वो उसकी कैपेसिटी पे लैग करते हैं, जब वो नहीं होंगी तो ये होगा और वो होगा। तो ये जेनेरिक बात है। एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स क्या हैं, वो ये हैं इस सेंटेंस में, और वो ये हैं कि डुबॉय एक और ऑथर है जो ये करता है कि एथनिक सेल्फ एस्टीम को, एथनिक सेल्फ अवेयरनेस को प्रोपेगेट करता है अलोंग विद ह्यूमन यूनिटी। या फिर फैनन जो है वो एम्फसाइज करता है इंटरनेशनलिज्म। इसका मतलब है कि अगर आप इंटरनेशनलिज्म को प्रमोट करेंगे तो इसका मतलब है कि आप ये जो अलग अलग कंट्रीज हैं, कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं इंडियन हूं, मैं इजिप्शियन हूं या मैं अमेरिकन हूं, ये सारी वेराइटीज खत्म हो जानी चाहिए। क्योंकि मैं इंटरनेशनलिज्म पे बिलीव कर रहा हूँ कि हम इस दुनिया के वासी हैं, बस हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और इस अर्थ के ऑक्यूपेंट्स हैं या इस अर्थ पे रहने वाले हैबिटेंट्स। कोई नेशनल आइडेंटिटीज नहीं होनी चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन फैनन कहता है कि नहीं, आइडियल इंटरनेशनलिज्म जरूर है, लेकिन जिसको अकोमोडेट करना चाहिए नेशनल आइडेंटिटीज और रोल्स को। इसका मतलब है कि अपेरेंट कंट्रडिक्शन होती लेकिन नहीं मानी जाती, और फैनन के काम को बड़ा जबरदस्त माना जाता है। इसी तरह डुबॉय के काम को फैनन, इसी तरह की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह ऑथर ये कह रहा है कि हैंसबरी की जो स्टेटमेंट, अब हम आते हैं अपने टेक्स्ट पे वापस, कि हैंसबरी भी उसी क्लास की है जो इन दोनों आयरनीज को, जो अपेरेंटली आयरनीज लगती हैं, उसको हाईलाइट करने में हेल्पफुल है। सो इन विच सेंटेंस द पैसेज डज द ऑथर प्रोवाइड, ऑथर ऑफ दिस टेक्स्ट नॉट हैंसबरी, एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करता है दैट रीइंफोर्स एन आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट रीइंफोर्स करती हैं वो वाला आर्ग्यूमेंट जो अगेंस्ट है क्रिटिकल रेस्पॉन्स। तो हैंसबरी के अगेंस्ट हमें अगले 3-4 सेंटेंसेस में एक क्रिटिक नजर आती है जिसको डिफेंड कर रहा है हमारे टेक्स्ट का ऑथर, इस पैराग्राफ इस पैसेज का सिर्फ ऑथर। उस पैसेज में जो वो डिफेंसिव आर्ग्यूमेंट यूज कर रहा है कि ये कंट्रडिक्शंस नहीं है, बेसिकली ये पोलैरिटी उसने जानबूझ के इंटेंशनली क्रिएट की हैं और ये कोएग्जिस्ट कर सकती हैं, उसकी एग्जांपल्स उसने इस लास्ट सेंटेंस में। गॉट इट? जब आप अपने एग्जाम में होंगे तो टेक्स्ट स्क्रीन पे जैसे ही आप ये माउस जो मेरा विजिबल है, जैसे ही किसी सेंटेंस पे लेके जाएंगे तो वो पूरा सेंटेंस, लेट से मैंने इस वाले लोरेन पे अगर क्लिक किया है, मतलब सिर्फ कर्सर किया है इसको, तो ये पूरा सेंटेंस हाईलाइट होता हुआ नजर आएगा, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो लॉक हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को एज योर आंसर कंसिडर करेगा। अगर आप यहाँ होवर करेंगे अपने माउस को तो वो वंस वाले सेंटेंस को होवर करके पूरा वो हाईलाइट करेगा। आप क्लिक करेंगे तो उस क्लिक के नतीजे में वो आंसर आपका काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि आप क्लिक करेंगे तो फिर आप अनक्लिक नहीं कर सकते, आंसर जमा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं। सो इस केस में हमारा चूंकि आंसर ये है तो कोई और ऑप्शंस नहीं आएंगी। 5 सेंटेंसेस थे, आप पांचों में से किसी को भी क्लिक कर सकते थे और सिर्फ एक कर सकते थे। एंड यू व्हेन यू डू दिस वन
योर आंसर विल बी डीम्ड करेक्ट। सो ये हमने दो चीजें कवर की कि विद इन टेक्स्ट सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज कैसे हाईलाइट किया जाता है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली एक्टिव एंगेजमेंट विद द रीडिंग क्या होती है। अब आप ये अगर सोच रहे हैं कि देखिए इतने से सेंटेंस पे एक क्वेश्चन पे हमें 2 मिनट या 3 मिनट या मैक्सिमम 4 मिनट लगाने चाहिए थे, हमने तो 10 मिनट या 12 या 15 मिनट भी लगा ली, परफेक्टली। अगर आपको आधा घंटा भी लगाना पड़ता है प्रैक्टिस के दौरान, यू मस्ट डू दैट। एंड दैट्स अ ट्रिक जो अक्सर लोग नहीं करते, प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा चले जाते हैं एंड देन दे आर अनएबल टू सी के वेयर दे आर गोइंग रॉन्ग। यू मस्ट सी, जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल देखी, जस्ट सी हियर हो क्या रहा है। अगर आप एक टेक्स्ट के साथ इंगेज करें और उसके बाद ऑप्शंस आए और आप ए क्लिक करके आगे चले जाएं, या आप ए के बजाय गलती से सी और बी सिलेक्ट कर लें, या ए और सी सिलेक्ट कर लें, या खाली बी सिलेक्ट कर लें और आप आगे चले जाएं, आपने 3 मिनट 4 मिनट लगाए भी, बट दिस आंसर विल बी एज गुड एज समवन हु डिड नॉट इवन लुक एट दिस क्वेश्चन, स्किप कर दिया, उसको भी 0 मिलेंगे, आपको भी 0 मिलेंगे। व्हाई? बिकॉज आपने पूरी ऑप्शंस करेक्ट नहीं की। तो पार्शियल आंसर्स क्योंकि नहीं है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द जीआरई क्वेश्चंस। तो जहां पे आपके मेंटल फ्रेम में कहीं रीडिंग कंप्रीहेंशन के चैलेंजेस हैं, प्रैक्टिस के दौरान ट्राई टू फर्निश एंड स्ट्रीमलाइन एंड आयरन दोज आउट एज वेल एज यू कैन, सो दैट आपकी ये 3-4 मिनट की एफर्ट छोटे से किसी एरर की वजह से गलत जगह पे प्लेस होगी तो ऑल ऑफ दैट इज वेस्टेड, प्लस इट कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। Any comments? We can take. Great. सेमिनार तो जी अभी है, वी हैव 4:30 तक करना है, फिर क्वेश्चन आंसर सेशंस भी हैं, ये वर्कशॉप। ओके ओके ओके। टेक्स्ट कंप्लीशन में क्या होता है? लेट मी, आई थिंक मैं दिस विल बी बेटर बिकॉज स्क्रीन हाइड नहीं होगी आपके साथ। ओके, टेक्स्ट कंप्लीशन में क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टेक्स्ट कंप्लीशन क्वेश्चन, स्ट्रेटजीज फॉर, लेट्स सी क्या है। टेक्स्ट कंप्लीशन इस तरह का होता है, आपको एक टेक्स्ट दिया होता है, उसके अंदर कुछ ब्लैंक्स होती हैं और वो आपने पिक करनी होती हैं। बहुत रेयर केसेस में सिंगल ब्लैंक होती है, अदरवाइज 2 या 3 ब्लैंक्स होती हैं, और वो उसी हिसाब से आप पिक करते हैं कि जैसे ही आप यहाँ पे रख के ए सिलेक्ट करेंगे, इस पूरे में से सिर्फ एक सिलेक्ट हो सकता है, इस पूरे में से एक सिलेक्ट हो सकता है, और इस पूरे में से भी एक सिलेक्ट हो सकता है। व्हाट हैपेंस इज दैट कि आपका जो चांस ऑफ एरर है या गैस वर्क है वो बहुत ही कम हो जाता है, बिकॉज आपने लेट से ए, डी और जी ऑप्शन ठीक थी, और आपने ए भी ठीक किया, डी भी ठीक किया, लेकिन जी की जगह एच कर दिया, so the whole effort is gone. There's no partial credit for that. Okay, so complete sentence आपका तब होगा। Let's take an example. To the untutored eye, अनट्यूटर्ड आए, देखें अभी जिस तरह मैंने पैसेज को एक ट्यूटर्ड तरीके से आपको आगे दिया कि पैसेज में ये वर्ड इस तरफ रिफ्लेक्ट करके जाएगा या बात अभी इस तरफ होने जा रही है, ये एक ट्यूटर्ड अप्रोच है, जब आपकी भी हो जाएगी, या किसी ऑब्जर्वेंट के लिए ये अनट्यूटर्ड आया हो सकती है। द टाइटली फॉरेस्टेड आर्डनस हिल्स, अब ये प्रॉब्लम्स जानबूझ के दिए जाते हैं, बिकॉज यू विल बी रीडिंग और अंडरटेकिंग अ मास्टर्स और अ पीएचडी प्रोग्राम फॉर दिस पर्पस इन अ मल्टी डाइवर्स प्रोग्राम में, प्लस ग्लोबल लेवल स्टडीज होती हैं, तो हर तरह की टर्मिनोलॉजीज और वर्ड्स और स्पेसिफिक और प्रॉपर नाउन्स आते हैं। वेदर डू यू गेट स्टक विद दैट, yeah, you go with the general flow and then you continue your own reading at that level या during the test। तो ये चीज असेस करने के लिए जानबूझ के, because I also design the passages, तो क्लियरली ये कहा जाता है कि बहुत ज्यादा ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी वाली टर्मिनोलॉजीज, बहुत ज्यादा एथनिक एंड रेशियल बैकग्राउंड्स की वोकेबलरी यूज करें, ताकि हम स्टूडेंट्स की वाइडर स्किल्स को भी असेस कर सकें, प्लस अगर एक अमेरिकन है तो वो भी डिफरेंट तरह के कॉन्टेक्स्ट के लिए असेस हो सके, और जो हम हैं एशियंस हैं वो बाकी तरह की ज्योग्राफिक लोकेशंस पे भी कर सकें। तो आई एम नॉट श्योर ये कहाँ है या इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, सो दैट शुड नॉट बी योर कंसर्न। आर्डनेस हिल्स, आर्डनेस हिल्स अराउंड द सेडन लुक क्वाइट, अनट्यूटेड आई को वो कैसे दिखेंगे हमें नहीं पता, ऐसे ऐसे नजर आएंगे, 1 or 2 प्लेस थ्रू विच टू एडवांस अ मॉडर्न आर्मी, even with today's more numerous and better roads and bridges, the woods and rivers muse form a significant
समथिंग, कहना क्या चाह रहा है। तो बिफोर वी जंप इनटू ऑप्शंस, नेवर डू दैट, नेवर डू दैट, जस्ट रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। लेट मी टेक अ लुक इफ देयर इज। ओके, टू द अनट्यूटर्ड आई, जिसको ये नहीं पता हो, टाइटली फॉरेस्टेड, इसका मतलब है कि कोई एक हिल्स हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट हैं, जिसके अंदर टाइटली पैक्ड ट्रीज हैं, अराउंड सडन एक इलाका है, वो क्वाइट डैश लगते हैं। और डैश कैसे लगने चाहिए? जो टाइटली फॉरेस्टेड हिल्स के अंदर ट्रीज होंगे, उसके अंदर से, अब चूंकि आगे आर्मी का भी जिक्र हो रहा है और वो एडवांस करती हुई जाती है, तो हमें अंदाजा हो रहा है कि वो उसके अंदर से आप इजीली जा सकते हैं या नहीं जा सकते। कैन यू पास, यस और नो में चलें, पहले पहले चीज का सिर्फ जवाब बताएं। इस ऑप्शन ए बी सी में से पिक ना करें आंसर, सिर्फ ये बताएं कि उनमें से गुजरना इजी होगा या नहीं, यस और नो, इस तरह की हिल्स के थ्रू। नो, नो, नो। ओके, ओके। यू सी, थोड़ा सा जब आप अटेंशन पुट करेंगे तो आप क्रैक करना शुरू कर देते हैं खुद ब खुद भी। ठीक है, तो अगर ऐसी पैसेजेस जहां से गुजरना मुश्किल हो, उनको हम इनकंसिडरेबल कहेंगे, इनपेनिट्रेबल कहेंगे, या कल्टीवेशन की तो बात ही नहीं हो रही। और अनकल्टिवेशन से ज्यादा ये है कि आप कल्चर्ड कितने हैं, उसके सेंस में अनकल्टिवेटेड यूज होता है। तो अनकल्टिवेटेड इज इररेलेवेंट। कहीं कहीं इररेलेवेंट वर्ड्स होते हैं, कहीं कहीं रेलेवेंट होते हैं, और सॉरी, इररेलेवेंट होते हैं, और फिर रेलेवेंट जो होते हैं उनमें से या ऑपोजिट होता है उसका जो आपको चाहिए, या वो रेलेवेंट, वो आपका राइट पिक होती है। इन दिस केस इनपेनिट्रेबल। अब लेट मी डू वन मोर थिंग, जो कि मैं आगे भी वैसे करूंगा लेकिन पता नहीं क्यों। नाउ आई थिंक माय स्क्रीन मस्ट बी ऑन द शेयर। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, you're audible. ओके, थैंक यू। एक चीज ध्यान में रखें, जितने भी लोग वर्बल की प्रैक्टिस अभी बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, काइंडली जो वर्ड्स हैं उनको सिर्फ रट्टा लगा के या थोड़ा सा आज के लिए पढ़ के भूलना नहीं है। वर्ड्स को कोशिश करें, दो फायदे आपको होंगे इस अप्रोच से। अप्रोच ये है कि वर्ड्स को कोशिश करें, एक विजुलाइज करने की कोशिश करें, राइट? उससे आपके जहन में ना सिर्फ वो वर्ड स्टक हो जाता है, बल्कि जब आप आइंदा के लिए फ्यूचर में कोई वर्ड्स सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड आंसर से पढ़ रहे होते हैं, तो भी उसकी एब्जॉर्प्शन का अंदाजा फर्क हो जाता है। अब मैंने सिर्फ इनपेनिट्रेबल लिखा है और मैं इमेजेस में चला गया। यू सी, दिस इज अ वॉल, इट्स क्लियरली रिटन, मतलब क्लियरली सीन कि ये एक ऐसी वॉल है जिससे गुजरना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। ठीक है, और इम्पेनिट्रेबल का क्या मतलब है वो हम वर्ड्स में भी देख लेते हैं। एंड हाउ डू यू गेट अवे विद दैट? ठीक है, अब जो और ऑप्शंस इसमें आई थी वो इस तरह ऑप्शंस थी। आ, ये जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? ठीक है, ये वर्ड्स के जोर पे एक गेम आती है जिसमें वो पूछता है कि व्हाट आर द अदर वर्ड्स फॉर इनपेनिट्रेबल, इनस्क्रूटनेबल, इनकम्प्रिहेंसिबल, अनफेदमेबल। ये सारे इसके मीनिंग्स हैं, लेकिन हमारे रेलेवेंट का है इम्परवियस, जिससे परमीट ना किया जा सके, गुजरा ना जा सके, इम्परमिएबल, डेंस। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। इफ यू वांट टू हैव रियल गुड वोकेबलरी, तो वो इस तरह आएगी कि आप उस वर्ड्स पे ज्यादा टाइम लगाएं। ज्यादा वर्ड्स कम टाइम में ना करें शुरू की स्टेज पे, कम वर्ड्स अच्छे तरीके से एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी से करें। आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू विद दिस। ओके, गॉन, थैंक यू। अच्छा, इतने इम्पेनिट्रेबल थे और साथ में क्या थे? अनप्रोपिशियस, अनरिमार्केबल। अनरिमार्केबल पता है बड़ी इजीली पिक हो सकता है कि इतने डेंस जंगल में बड़ी कोई रिमार्केबल जगह, ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए डाली। रिमार्केबल होना बहुत, एक तो रेलेवेंट नहीं है वैसे कि वो हिल्स इतनी डेंस नहीं है, तो एक आपको ध्यान में ना एक अजीब सा वो बन जाता है कि हाँ यार को बड़ी जबरदस्त और आला किस्म की, और वो सीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर होगी, लेकिन मिलिट्री के एडवांस करने के लिए या किसी और के गुजरने के लिए रिमार्केबल है या नहीं है इज नॉट मैटर। हम गुजर सकते हैं या नहीं गुजर सकते, क्या वो आसान है या मुश्किल है, क्या वो तल्ख है या वो है, तो हम उसके तरफ ज्यादा रहेंगे। तो अनरिमार्केबल दोनों तरह से गलत है। एक तो रिमार्केबल की सेंस नहीं है यहाँ पे,
लेकिन दूसरा आप देखें ये अनरिमार्केबल है। आप कहें कि यार इस बंदे की जो डिग्रीज है ना वो पता नहीं इतनी तो बड़ी रिमार्केबल अचीवमेंट है, और इसके अगेंस्ट एक ये है कि आपने बिल्कुल ही सिंपल तरीके से कोई प्रोफाइल आपकी अभी तक नहीं बनी हुई है कुछ, तो आप कहेंगे अनरिमार्केबल। तो अनरिमार्केबल इज बेसिकली द ऑपोजिट ऑफ रिमार्केबल, लेकिन जल्दी में होते हैं आप टेंस में एनवायरमेंट में होंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप अनरिमार्केबल उस तरह की हिल्स को कहें। तो ना ये रेलेवेंट है रिमार्केबिलिटी और अनरिमार्केबिलिटी, और सेकंड ये है कि अगर होती भी तो अनरिमार्केबल हमारे फ्लो के हिसाब से ऑपोजिट जा रहा है। अनप्रोपिशियस वो होता है कि जो फायदेमंद ना हो, जो बहुत डिफिकल्ट हो, कठिन, कठिन के सहन में। तो मैं तो जाती तौर पे वैसे उर्दू अगर आपकी स्ट्रांग है तो कोशिश करें कि उर्दू का जो उसका स्पेसिफिक मीनिंग बनता है वर्ड का वो भी जहन में रखें। अनप्रोपिशियस इज समथिंग विच इज नॉट वेरी इजी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मुश्किलात हायल होती हैं, तो दिस इज अ परफेक्ट pick for this. So our second option is E. And then third, तो वो इतनी इस तरह की प्लेस है कि थ्रू विच टू एडवांस अ मॉडर्न आर्मी इवन विद टुडेज। अच्छा देखिए, अब ये है वो जो मैं एक्टिव एंगेजमेंट की बात कर रहा हूँ। आई होप यू आर एबल टू सी कि मैं होवर कहाँ कर रहा हूँ, माउस कहाँ पे कर रहा हूँ। मैं थोड़ी थोड़ी देर में कंफ्यूज हो जाता हूँ कि वेदर आई एम विजिबल। एनीवन कैन टेल कि मैं कहाँ पे हाईलाइट कर रहा था। इवन विद टुडेज, इवन, ओके, थैंक यू। सो इवन विथ, इसका मतलब है कि वो हिल्स अब तक इजीली एडवांस नहीं की जा सकती। तो आप अगला जुमला भी, अगला जो पार्ट है सेंटेंस का वो भी पढ़ने लगे हैं, लेकिन स्टिल यू कैन मेक आउट कि एग्जैक्टली किस तरह की चीज आने वाली है, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं ना दे आर हेल्पफुल। ये आपके ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, सिग्नल वर्ड्स होते हैं, दीज आर वेरी हेल्पफुल। दिस इज योर एक्टिव एंगेजमेंट कि आज की इवन विथ टुडेज मोर न्यूमरस एंड बेटर रोड्स। ना सिर्फ रोड, अब ये देखें ये रेलेवेंट नहीं है लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, देखें दो बातें, रोड्स बढ़ भी बहुत गई हैं और बेहतर भी हो गई हैं। जो पहले रोड्स होती थी, अगर वही रोड मैं बेहतर कर दूं तो वो बेटर रोड्स हैं, लेकिन पहले 4 रोड्स होती थी अब 40 रोड्स हैं, तो ये मोर न्यूमरस। ठीक है। और एक और बात, मैं आई एम सॉरी मैं थोड़े लिंग्विस्टिक्स में ज्यादा चला, मोर न्यूमरस में एक और सेंस समझे। न्यूमरस का मतलब ज्यादा ना होता, न्यूमरस का मतलब ज्यादा जरूर होता है। इसका मतलब है कि आज भी ज्यादा है, लेकिन कंपैरिजन नहीं है कि क्या पहले भी नहीं था। वो तो हम अपना जनरल नॉलेज यूज करते हुए कह सकते हैं कि पहले रोड्स ज्यादा नहीं थी, न्यूमरस रोड्स अगर हैं तो वो आज की होंगी। लेकिन अज्यूम करें किसी जमाने में या किसी खास इलाके में बहुत पहले भी न्यूमरस रोड्स होती थी, तो आज की भी न्यूमरस है, इसलिए उसे कहना पड़ा मोर न्यूमरस। ठीक है। सो मोर न्यूमरस इज ज्यादा भी है, और मोर इज इन कंपैरिजन कि वो जो पुराने जमाने से वो हिल्स जो लोग उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा रोड्स आसपास बन गई हैं। द वुड्स एंड द रिवर म्यूज फ्रॉम फॉर्म अ सिग्निफिकेंट। तो ये जो रिवर है या जो वुड्स उसके अंदर हैं, उस हिल्स के फॉरेस्ट के अंदर, वो आपकी किसी भी चलने को या किसी आर्मी के गुजरने को आसान बना देती होंगी या मुश्किल बना देती होंगी, गिवन के सेकंड पार्ट भी आ गया और सेकंड पार्ट सपोर्ट कर रहा है पहले वाले पार्ट को। ठीक है। इवन विथ टुडेज, आज की मॉडर्न आर्मी के लिए भी कहता है ये थोड़ा सा क्या होगा, सिग्निफिकेंट पैसेज होगा। ठीक है। ऑप्शन आई, ऑप्शन आई करेक्ट होगी, यस या नो बताते जाएं चैट में प्लीज। नो, एग्जैक्टली नो, पैसेज इज जस्ट टू कंफ्यूज यू। पैसेज तो है, वी नो पैसेज है, लेकिन डिफिकल्ट है। पास किया जा सकता है उसको, नहीं किया जा सकता, नहीं। तो पैसेज इज अगेन यू सी, कोई भी रैंडम वर्ड डाला जाता तो ये ऑप्शन बन जाती, लेकिन जीआरई के पैसेजेस बहुत रिसर्च के बाद होते हैं। आप सोचें आप टाइम इंटेंस एनवायरनमेंट में, आप इस सेंटेंस पे हो सकता है 3-4 मिनट पहले लगा चुके हो, आप वैसे टेंस नहीं थे लेकिन इस क्वेश्चन पे ज्यादा टेंस हो गए, तो आपने आखिरी ऑप्शन जल्दी से पैसेज क्लिक कर लिया एंड ऑल ऑफ योर प्रीवियस एफर्ट वेंट ऑफ। इम्पेडिमेंट, दे ऑफर अ सिग्निफिकेंट इम्पेडिमेंट। ये सिग्निफिकेंट इम्पेडिमेंट है इसको क्रॉस करना। ठीक है। दे Um, फॉर्म, Zulfiqar, फॉर्म का चक्कर। could you try unsharing and resharing? Some people in the chat box are saying that their screen's not visible. If you could just like हाँ, reshare, unshare and reshare, maybe it like works, starts up for everyone okay. else. जिन Sorry. लोगों को पहले नजर नहीं आ रही थी, आर दे एबल टू सी नाउ? On my end, it's completely visible, and I think most people can also see it. हाँ, मैंने दोबारा से वो किया जो आपने कहा।
इट्स विजिबल, ठीक है। जिनको नहीं आ रही थी उन्होंने अब शायद रेस्पॉन्ड किया। ओके, सो माय पॉइंट देखें, मैं इस सेशन में यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपको पूरा जीआरई या वर्बल पूरी प्रैक्टिस नहीं करवा सकता, लेकिन मैं आपको सो आई एम नॉट समवन जो कि आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन टाइप्स करवा के छोड़ देगा। 10 क्वेश्चन टाइप्स आप किसी यूट्यूब वीडियो पे भी देख सकते हैं, या आपके और भी बुक्स वगैरह अवेलेबल है। आई एम शेयरिंग एज अ ट्यूटर, एज अ कोच, बिकॉज मैं जीआरई वर्बल पे और अदरवाइज भी वर्बल क्वेश्चन किसी और टेस्ट में हो तो उस पर टेस्टिंग करवाता हूँ, कोचिंग करता हूँ। My idea is to share my approach with you and how I feel कि जो मैं गैप्स देखता हूँ पॉसिबल टेस्ट टेकर्स में, वो ये होते हैं कि आप टाइम लगाएं, आप 100% कॉन्फिडेंट हो के किसी ऑप्शन को रूल आउट करें। ठीक है, कि जो मैंने ऑप्शन पिक की है, मतलब इन सेंस कि आपने जब प्रैक्टिस के दौरान पिक की, दैट इज, अगर आपको कंफ्यूजन है तो उस आंसर ऑप्शन जब आप प्रैक्टिस करें लिखें कि मैं 80% कॉन्फिडेंस से इस ऑप्शन को पिक कर रहा हूं, मैं 70% कॉन्फिडेंस से पिक कर रहा हूं, मैंने रैंडम गैस लगाया 0% कॉन्फिडेंस से पिक कर रहा हूं। उस कॉन्फिडेंस को फिर गेज करें कि आपने, अगर आपने 100% कॉन्फिडेंट हो के you picked a wrong option, that's a big no. It means there is something definitely wrong in the framework of your mental approach to taking these questions, और उसको करेक्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ना करेक्ट करना बहुत ज्यादा डैमेजिंग है एज कंपेयर टू कि अगर आपने 30% कॉन्फिडेंस से किसी गलत ऑप्शन को पिक कर लिया, बिकॉज यू आर ऑलरेडी कंफ्यूज अबाउट इट, सो दैट्स फाइन। लेकिन ये इंश्योर करें कि आप सारी ऑप्शंस को कैसे आउट करेंगे, और सारे वर्ड्स यहाँ से ना, वर्ड्स को जरूर पिक करने की कोशिश करें। और फिर इस तरह की चीजें जरूर करें, ड्यूरिंग रीडिंग तो करें, लेकिन आखिर में मैं दोबारा से आपको हाईलाइट करूं, टाइटली फॉरेस्टेड हिल्स हैं, लुक्स क्वाइटली, तो जो टाइटली फॉरेस्टेड होंगे वो किस तरह की दिखेंगी, उस तरह का है। थ्रो विच टू एडवांस द मूव इन मॉडर्न आर्मी इवन विद दिस, तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपके किसी एक सेंटेंस के लिए भी देखें कितने क्रिटिकल हो जाते हैं। ओके, टेक्स्ट कंप्लीशन की एक और प्रैक्टिस इन इंटरव्यूज। ओह वंडरफुल, आई लव दिस वन। वेरी सिंपल, and I want every one of you to share your answers, and the practice that I'm going to suggest to you कि जब आप अपना आंसर ऑप्शन दें, वर्ड दें, 1 2 3 ना लिखेंगे, सिंपल वर्ड्स हैं, उसके साथ ब्रैकेट में या डैश करके ना परसेंटेज भी डालें कि आप 20% कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहे हैं, आप 50% कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहे हैं, एंड do it quick, like within next, okay, go ahead. स्क्रीन शेयरिंग में लोगों को अगर प्रॉब्लम आ रहे हैं तो मैं दोबारा से करता हूँ, स्टॉप शेयर। ओके, जी
Your screen is visible now, Zulfiqar. I'm not sure क्या प्रॉब्लम आ गया था. People, if you can see the screen, please share your answers and the confidence with which you are answering this one. जी, please answers बताएं आप. You have the screen in front of you. Which option are you picking up? Personable, indignant. Please, can everyone send your responses? It will be helpful for me to see कि मैं कितना लगाऊं. Indignant. Number 2, मैंने कहा word pick कर लें. Indignant ठीक है. Indignant, indignant ना सिर्फ ज्यादा है बल्कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से आ रहा है. ओके. Munificent. Munificent का मतलब क्या होता है वैसे? और लोग बताएं जी. म्यूनिफिसेंट होता है कोई चीज जो बेनिफिशियल हो, कोई दवाई, कोई सीनरी, जेनरोसिटी जिसके अंदर बहुत ज्यादा हो. अ, देखें, अब चूंकि आप लोगों ने काफियों ने पिक किया ये जो ऑप्शन थी इंडिग्नेंट को, या कुछ ने बाकियों को पिक किया. लेट मी टेल यू कि ये जीआरई का टेस्ट है ना, इसीलिए मुश्किल है. और जिन लोगों ने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस ने इंडिग्नेंट को उठाया है, और बहुत ज्यादा लोगों ने उठाया, फॉर एवरी वन इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न. देखें, जीआरई का जो सेंटेंस है ना, मैंने जिस तरह पहला जुमला कहा, मुझे एग्जांपल्स कोट करते हुए थोड़ा सा कि जी मैंने पानी पिया, ना सिर्फ मैंने पानी पिया, मैंने पानी नहीं पिया. ये नहीं है कि मैंने पानी नहीं पिया. अब ये सारी वेरिएशंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही लफ्ज को, कान को इधर से इधर पकड़ा जा रहा है. जो बहुत से लोग, जब मेरा ख्याल है कि जब तक आपका ये बिलीफ ना हो कि ये टेस्ट बहुत अच्छा डिजाइंड है और ये डालने के लिए मुश्किल बना रहा है, ऐसा नहीं है. इट्स एक्चुअली टेस्टिंग व्हाट इट नीड्स टू असेस. सो टेक दिस टेस्ट सीरियसली एंड सी टू इट कि क्या है. एक ही जुमला है, दो पार्ट्स. इंटरव्यूज में डेस्पॉट्स आर ऑफ्टन सरप्राइजिंगली डैश. सरप्राइजिंग तरीके से डेस्पॉट्स जो होते हैं वो, तो सबसे पहले तो आपको डेस्पॉट्स का मतलब होना चाहिए. ऑटोक्रेट्स जो होते हैं, ठीक है, जो वन मैन शो टाइप रूलर्स होते हैं, काफी मुल्कों में इसी तरह के सिस्टम्स हैं, कुछ हद तक हमारे यहाँ भी रहे हैं काफी. अ, तो जो आयरन फिस्ट के साथ अपनी नेशन को कंट्रोल करते हैं, दे आर सरप्राइजिंगली डैश. डेस्पॉट्स को कैसा होना चाहिए ताकि सरप्राइजिंग ना लगे? ठीक है, ऑटोक्रेटिक ही लगना चाहिए, उनकी टोन बड़ी टफ होनी चाहिए, रिजेक्टिंग होना चाहिए, किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, इस तरह की डाउन किसी को फील करवाना, उस तरह की होनी चाहिए. लेकिन ऐसे नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि हम सरप्राइजिंगली कोई ऐसा वर्ड उठा रहे हैं कि वो ऐसे नहीं है. कैसे नहीं है उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हम आ गए, लेकिन इतना हमें पता चल गया सेकंड पार्ट पढ़े बगैर, ये वाला पार्ट पढ़े बगैर, कि यहाँ एक पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए. क्योंकि डेस्पॉट्स का अदरवाइज जो होना चाहिए था, वो उनका जो अपियरेंस या लुक है वो नेगेटिव ही यहाँ आना चाहिए था. लेकिन वो सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं है, इसका मतलब है. या वो कहता सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं है, या कहेगा सरप्राइजिंगली उसके ऑपोजिट कोई वर्ड डालेगा. सो अगर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे तो एक पॉजिटिव वर्ड एक्सपेक्ट. दिस हेल्प्स टू एक्सप्लेन. तो इसका मतलब कोई वो ऐसे दिखते हैं कि उससे हमें यह समझने में आसानी होती है कि हाउ सीमिंगली ऑफुल पीपल आर एबल टू कमांड सो मेनी फॉलोअर्स. सीमिंग मतलब है कि मुझे लगता है कि मुशर्रफ बहुत बड़ा वो है, ऑफुल बंदा था. चलन गुजर गए जो भी है मामला. लेकिन किसी को इस तरह लगता है कि सीमिंगली ऑफुल पीपल है. लेट्स से इसराइल वाली कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि यार इतना ऑफुल बिहेवियर है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो रहा. तो कुछ
इस तरह की लैंग्वेज ट्विस्टिंग आ रही है। दिस हेल्प्स टू एक्सप्लेन हाउ सीमिंग, तो क्या चीज हेल्प कर रही है ये समझने में कि जो ऑफुल पीपल हैं दे आर एबल टू कमांड सो मेनी फॉलोअर्स। जो बहुत ज्यादा फॉलोअर्स कमांड कर सके, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो पॉलिटिकल स्फीयर्स में हो, चाहे जिस भी जगह हो, उसके लिए जो यहाँ वर्ड होना चाहिए ना, वो होना चाहिए पॉजिटिव वर्ड, वो वाला आना चाहिए। ये हमें पता चल गया। तो हमें पहले से ये पता चला कि यहाँ पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए, और दूसरा स्टेम पढ़ के ये पता चला कि कौन सा पॉजिटिव आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम नेगेटिव को आउट करते हैं। मेलाइन नेगेटिव वर्ड, इंडिग्नेंट नेगेटिव वर्ड, इन दोनों को हमें फौरन ही हटाना है, क्योंकि डेस्पॉट्स आर ऑफ्टन सरप्राइजिंग। अगर सरप्राइजिंगली मेलाइन हो, आप अज्यूम करें मेलाइन ठीक वर्ड, अगर वो सरप्राइजिंगली मेलाइन नेगेटिव माइंडेड हैं, तो वो उनकी मेलाइन होना कैसे हेल्प करेगा टू एक्सप्लेन कि वो इतने ज्यादा फॉलोअर्स कमांड करते हैं। जुमला का मीनिंग नहीं बना ना। आप समझ रहे हैं, टेक्स्ट कंप्लीशन एक पूरा आर्ट है कि आपका टेक्स्ट इस तरह से कंप्लीट हो कि वो कंप्लीट मीनिंग दे। अगर वो मेलाइन डेस्पॉट्स हैं, ऐसे ही दिखते हैं, तो फिर वो इतने ज्यादा फॉलोअर्स क्यों लाएंगे? क्योंकि सेंटेंस ही हमारी पूरी इंफॉर्मेशन है ना। आपकी जनरल नॉलेज काम नहीं आएगी कि वो मेलाइन ही होते हैं जी, ऐसे होता है। वी आर टेकिंग ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम विद इन द अवेलेबल टेक्स्ट। इंडिग्नेंट, ऐसे जो किसी को गुस्सा दिला दें, जो बहुत ज्यादा जल्दी किसी को पुट ऑफ कर दें, या अपनी बेइज्जती फील करें या बेइज्जती फील करवाएं। अगर ऐसे होंगे तो फॉलोअर्स कैसे उनके ज्यादा बनेंगे? तो ये दोनों वर्ड्स हो भी नहीं सकते थे, और नेगेटिव होने की वजह से वैसे भी नहीं हो सकते। नेगेटिव वर्ड यहां नहीं आएगा। फॉर गिविंग होते, अगर वो फॉर गिविंग होंगे तो लोगों ने बहुत ज्यादा चाहेंगे, हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। तो दिस इज नॉट परफेक्ट फिट। आप देखिएगा जितनी भी ऑप्शंस जीआरई की करेक्ट होती हैं वो परफेक्ट फिट होती हैं। आपको तब तक नहीं समझ आएगी, अलग बात है, लेकिन परफेक्ट फिट ही होंगे। पर्सनेबल, पर्सनेबल का मतलब अगर आप अभी भी अपने क्रोम पे गूगल पे जाएं और पर्सनेबल लिखें तो उसका फौरन आपको मीनिंग आ जाएगा। एनीवन, जो पर्सन्स के साथ बहुत अच्छा घुल मिल जाता है, जल्दी उनकी लाइकनेस अचीव कर लेता है, उसको पर्सनेबल कहते हैं। अगर मैं कहूँ आई एम वेरी पर्सनेबल पर्सन इन दिस ऑफिस, इसका मतलब इस ऑफिस में मैं जिससे भी मिलता हूँ या ज्यादातर लोगों से मिलता हूँ, तो मैं जल्दी उन्हें अपना गर्विदा बना लेता हूँ, उन्हें जल्दी से, मतलब सो आई हैव दिस चार्मिंग। तो आप बेसिकली, आप पहले अगर ना भी वर्ड्स पिक करें, इसमें ट्रिक ये होती है कि आप वर्ड्स ना पिक करें, आपके जहन में यहाँ वर्ड आना चाहिए थे चार्मिंग, समवन हु इज एबल टू कमांड पीपल and their viewpoints positively. Personable is the right word. Munificent positive word है, बिल्कुल सही है, लेकिन munificence किसी चीज के बारे में बहुत जेनरस होना, फॉलोअर्स की बहुत बड़ी कमांड कैसे करवाता है? करवा भी सकता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी जब तक हाईलाइट हो, लोगों को समझ आए, पसंद आए, और फिर वो उन्हें लाइक, तो इट्स अ लॉन्गर प्रोसेस एज कंपेयर टू, उसके लिए बेहतर वर्ड आपको मिला हुआ पड़ा है, विच इज पर्सनेबल। सो पर्सनेबल इज द राइट ऑप्शन। एंड वाई यू आर, मेनी ऑफ यू, कुछ लोगों ने सही आंसर भी दिए, नॉट एबल टू पिक इट, वो तीन लेवल्स पे इश्यूज थे। पहला, आपने सेंटेंस को प्रॉपरली समझने की कोशिश ही नहीं की, आपने क्विकली डेस्पॉट्स निकाले और आपने मेलाइन डाल दिया, ये थी पहली स्टेज। दूसरी, जिन्होंने फॉरगिविंग या म्यूनिफिसेंट दिया, उन्होंने कहा ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं, और शायद पर्सनेबल भी कुछ लोगों ने तुक्के पे ठीक कर लिया। ठीक है, तो ये इसलिए किया कि यहाँ पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए। लेकिन क्यों पर्सनेबली है और बाकी दो पॉजिटिव वर्ड्स और दो नेगेटिव तो डेफिनेटली नहीं है? वो इसलिए है कि आपको इस डेफिनेशन को फुलफिल करवाना, कि वो प्रॉपर्टी, वो कैरेक्टरिस्टिक आएगा जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करे आपकी एबिलिटी टू कमांड सो मेनी फॉलोअर्स। लेट मी टेक अ क्विक लुक। ठीक, ओके, लेट्स गेट टू द सेंटेंस इक्विवेलेंस में। आपने स्टेटमेंट सुननी है ऐसी कि 6 ऑप्शंस होंगी, उन 6 में से कोई 2 वर्ड्स एक ब्लैंक होगा। वो टेक्स्ट कंप्लीशन नहीं होता। वो टेक्स्ट कंप्लीशन इसलिए नहीं कहलाता कि हम उस सेंटेंस के उस ब्लैंक में, जिस तरह ये एक है, एक ऐसा वर्ड डालते हैं जिससे सेंटेंस का एक मीनिंग बन जाता है। जब इस सेंटेंस का वो मीनिंग बन जाता है, तो उसी तरह का मीनिंग इस पूरे सेंटेंस पे किस और वर्ड डालने से आएगा। सो जरूरी नहीं है सिनोनिमस वर्ड्स, पूरे सेंटेंस का मीनिंग सेम लाने के लिए हो सकता है कि काफी डिफरेंट वर्ड रखना पड़े। तो इस तरह के ऑप्शंस के लिए सेंटेंस इक्विवेलेंस होता है। लेट्स से
macromolecule RNA is common to a living beings. DNA, which is found in all organisms except some bacteria, is almost as dash. The macromolecule RNA is common to all living beings, and DNA, which is found in all organisms except some bacteria, is almost as क्या होना चाहिए? पहले हम जाते हैं कि इन वर्ड्स को आप ना पढ़ें। हम ये कह रहे हैं आरएनए जो है वो सब जो भी है हमें पता है कि आरएनए वैसे क्या है, लेकिन अगर आपको नहीं इसकी डेफिनेशन पता है या डीएनए की, तो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। कहना वो ये चाह रहा है। सो मैं आपको बार बार हाईलाइट करवा रहा हूँ, आपकी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज इज नॉट इंपॉर्टेंट। समथिंग विच इज कॉल्ड आरएनए इज कॉमन टू ऑल लिविंग बींग्स, एंड डीएनए which is found in all organisms, which is the same thing, living things या organisms। या अगर आपको बहुत ज्यादा उसकी कोई डेफिनेशन पता भी है तो इट डज नॉट मैटर हियर, फॉर अ जनरल रीडर लाइक मी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिजम्स आर सेम। तो डीएनए भी सब में होता है सिवाय बैक्टीरिया के, लेकिन कहता है कि इज ऑलमोस्ट एज डैश। तो बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हो सकता है बहुत छोटा हिस्सा होते होंगे, या मुझे अगर नहीं भी पता तो भी मैं अज्यूम कर सकता हूं कि आगे वो ये कहना चाह रहा है कि डीएनए इज ऑलमोस्ट एज डैश, मतलब मैं भी इतना ही बुरा हूं जितना वो, मैं भी इतना ही अच्छा हूं जितना वो, मैं भी इतना डिजायरस हूं जितना वो। इस टोन में बात हो रही है। सो योर एबिलिटी टू रीड द टोन, द फ्लो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट कम्स विद मोर रीडिंग। और इस केस में यही है कि आरएनए भी बहुत ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है, और डीएनए भी इज ऑलमोस्ट एज क्या, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट। और उसका इक्विवेलेंट यूबिक्विशियस है, ना सिर्फ वर्ड का। जब यूबिक्विशियस आप यहां डालेंगे तो इसका मतलब होता है कि प्रेजेंट एवरीवेयर। तो डीएनए भी सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। वो ये कहना चाह रहा है कि जिस तरह आरएनए है, डीएनए भी उतना ही यूबिक्विशियस है। इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट, बिल्कुल इट मेक सेंस। अगर आप सिग्निफिकेंट डालेंगे तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सेंटेंस की ज्यादा जो इफेक्टिवनेस आ रही है वो है किसी की चीज की फाउंड होने की, कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस हद तक पाया जाता है। सो सिग्निफिकेंट इज नॉट रेलेवेंट। अच्छा, फंडामेंटल है, बिल्कुल डीएनए सब ऑर्गेनिजम्स के लिए फंडामेंटल है, लेकिन हम फंडामेंटेलिटी की एक तो बात नहीं कर रहे। सेकेंडली, अगर हम फंडामेंटल पिक कर लें तो हमें कोई और वर्ड ऐसा नहीं मिल रहा जो सेंटेंस की जो मीनिंग फंडामेंटल डालने से बनेगी वो उस दूसरे लफ्ज के डालने से भी वही मीनिंग बने। कंप्रिहेंसिव का एक डिफरेंट टच है, बट इन एनी केस ये रेलेवेंट भी नहीं है इतने, और अगर होते तो इनके इक्विवेलेंट वर्ड्स आपको यहां नहीं मिल रहे। इंक्लूसिव फर्क चीज होती है, वो यहां नहीं आएगा। सो द राइट ऑप्शन इज यूनिवर्सल एंड यूबिक्विशियस, प्रेजेंट एवरीवेयर, इज कॉमन टू ऑल लिविंग बीइंग्स, एंड आपको बता रहा है कि डायरेक्शन सेम रह रही है। तो आपने इज कॉमन, इस हद तक कॉमन है कि बराबर का कोई लफ्ज लाना है, विच अगर आप डिक्शनरी डेफिनेशंस देखेंगे तो वो यूनिवर्सल और यूबिक्विशियस 100% आते हैं, बाकी दूर दूर तक नहीं फील होंगे आपको। रेलेवेंट लग सकते हैं लेकिन दूर दूर तक उस एट्रीब्यूट को हिट नहीं करते। सो आपने सिर्फ दो इक्वल सेंटेंसेस नहीं लाने हैं, ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन एज वेल, कि राइट फॉर्म में, राइट डायरेक्शन में सेंटेंस कंप्लीट हो। अच्छा, फिर टेक्स्ट कंप्लीशन में मल्टीपल ब्लैंक्स भी आते हैं, और ये हमने कुछ हद तक एग्जांपल्स किए भी हैं बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। टेस्ट के साथ थोड़ी सी मैं एक दो और चीजें आपको बताऊं। जो ये तो एनालिटिकल राइटिंग का है, स्क्रीन कैसी आएगी वो आपको पता होना चाहिए। यू कैन एग्जिट अ सेक्शन, यू कैन रिव्यू। अगर आप किसी क्वेश्चन के बारे में स्टक हो गए हैं, वहां पे आप मार्क अगर उस क्वेश्चन को कर देंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिव्यू का बटन दबाएंगे, स्क्रीन पे अवेलेबल होता है हर वक्त, तो आपने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, कौन से कर लिए हैं, और क्विज पे आपने मार्क का बटन दबा दिया था, वो वहां पे नजर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। एनालिटिकल राइटिंग सेक्शन के जो अब सेक्शन है वो फर्क है, इसलिए वी आर गोइंग टू दिस। स्कोरिंग 130 से 170 की होती है, और 130 इज कंसिडर्ड बेयर मिनिमम, मतलब जीरो कंसिडर होगा, और 170 हाईएस्ट कंसिडर। इस 40 के बैंड में आपका स्कोर आता है। अब आप देखें क्वेश्चंस आपके पास 12 और 15 27 हैं, लेकिन स्कोरिंग बैंड 40 है, तो हर क्वेश्चन का सेम वेट नहीं होता। उसके लिए मैं आपको आगे एक और 1 पॉइंट इंक्रीमेंट होगा। लेट से 165 किसी का आया तो 164 होगा या 166 नेक्स्ट होगा।
इसके बीच का नहीं हो सकता, पॉइंट्स में आंसर्स नहीं होंगे, पार्शियल आंसर्स नहीं होंगे, परसेंटाइल्स में स्कोर ज्यादा रेलेवेंट लगता है, विच इज कि अगर आप कहते हैं मैं 50th परसेंटाइल स्कोर लिया तो इट मींस कि आपने एक लाइन में असेंडिंग ऑर्डर से हाँ असेंडिंग ऑर्डर से अगर खड़ा किया जाए तो लोएस्ट वाला सबसे पहला खड़ा होगा और आखिर में सबसे हाईएस्ट वाला आएगा, तो हाईएस्ट वाले के हिसाब से बताया जाएगा कि आप कितनों से बेहतर हैं। तो जो सबसे बेहतर स्कोर वाला होगा वो 99% लोग जिन्होंने टेस्ट लिया उनसे बेहतर परफॉर्म किया। अगर आप कहते हैं 97th परसेंटाइल, इसका मतलब है कि आप 97th नंबर पे खड़े हैं, 97% लोगों से बेहतर है, टॉप 3% में हैं आप। टेस्ट डे पे आपको क्या करना चाहिए, आप अपने स्कोर सारे के सारे फौरन भेज सकते हैं या अपना लेटेस्ट स्कोर सिर्फ भेज सकते हैं। अगर आपने पहली दफा टेस्ट दिया तो आप ये भेज सकते हैं या आप इसको स्किप कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपने अगर दूसरी दफा टेस्ट दिया तो आपका ये टेस्ट बेहतर है तो आप दायरा यही भेजना चाहेंगे तो आप अपना लेटेस्ट टेस्ट भेज सकते हैं। अगर आपने दूसरी दफा टेस्ट लिया और वो बुरा स्कोर आया पिछले से तो आप दोनों स्कोर्स भेज सकते हैं। ये ऑप्शन नहीं होगी कि आप इस वाले को छोड़ दें और जो बेहतर आया था पिछली दफा उसको सिर्फ भेज दें। दीज आर जनरल नॉलेज, ये मैंने इसलिए रखे थे क्योंकि टाइम बच जाता है। एक चीज ध्यान में रखें कि सेक्शन लेवल एडेप्टेबिलिटी एक चीज होती है। सेक्शन लेवल एडेप्टेबिलिटी ये है कि जो पहले 12 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे वो सबके लिए जनरलाइज डिफिकल्टी लेवल पे होंगे, मतलब क्वेश्चन सेम नहीं होंगे, उनका डिफिकल्टी लेवल सेम होगा। उससे होगा ये कि जो बहुत ज्यादा कमजोर स्टूडेंट्स हैं परफॉर्मेंस में, लेट से उनका स्कोर 20 या 30 की रेंज में होना चाहिए, तो वो पहले सेक्शन में असेस हो जाता है। अब 20 और 30 की विंडो में वो आपको कहता है यार हो सकता है आपने कुछ क्वेश्चंस बाय चांस गलत कर लिए हो या बाय चांस ठीक कर लिए हो, तो आपको 15 से 30 के दरमियान की वेरिएशन डिफिकल्टी का सेकंड सेक्शन देगा। लेकिन जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया उनको वो 60 to 80 की रेंज में, या अगर और भी अच्छा किया तो 70 से 90 की रेंज में डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस होंगे, वही सेकंड टेस्ट आएगा। विच मींस कि आपका नेक्स्ट सेक्शन आपके पहले सेक्शन की परफॉर्मेंस के हिसाब से होता है। पहले सेक्शन में एक बैंड आपको मिल जाता है, ये सारा सॉफ्टवेयर में हो रहा था, आपको पता कुछ नहीं चलता, और उस बैंड के अंदर आप एग्जैक्टली कहां फॉल करते हैं उसके लिए सेकंड सेक्शन आता है। तो सेक्शन लेवल एडेप्टेबिलिटी इस हमारे सेशन के हिसाब से आज इतनी मुझे रेलेवेंट नहीं लग रही, बट यू कैन रीड अबाउट इट कि अगला सेक्शन अडेप्ट होके आता है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ योर फर्स्ट सेक्शन। सो वी आर गुड फॉर हेयर। और अगर आप लोगों के अब कुछ क्वेश्चंस हों तो, हाँ सॉरी, तीन चीजें रहेंगी। टाइम मैनेजमेंट, ये आपकी रीडिंग एबिलिटीज पे डिपेंड करता है, लेकिन इवेंचुअली आपको टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। स्किमिंग वर्सेस रेड, अगर आपको लगता है कि आप थोड़ी सी इंटेंस रीडिंग करके बेहतर आंसर निकाल लेंगे फिर तो आप डिटेल में रहें, लेकिन अगर आपको लगता है कि चांसेस कम है तो फिर आप स्किमिंग करके भी आंसर थोड़ा सा आगे ले जाएं ताकि आपका कम से कम टाइम बचे, बाकी तो आपका रिस्क फैक्टर वहीं रहेगा। एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी, तो मैंने जिस तरह वो म्यूनिफिसेंट वाली एग्जांपल आपको बताई या आप मलाइन आपने कहा इंडिग्नेंट का, जब आपको पता है कि नेगेटिव वर्ड एक दफा अगर आप कंक्लूड कर लेंगे तो फिर वो बार बार जो कंफ्यूजन होती है ना, अच्छा यार मैं दोबारा देख लूँ ऑप्शंस, तो पहले तो ऑप्शंस अपने पास कोशिश किया करें, क्योंकि पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो अपने पेपर रफ पेपर पे A B C D लिख लिया करें, और जैसे ही आपको लगे कि ऑप्शन ए नहीं हो सकती और क्लैरिटी से जब कंफर्म हो जाए आपको, तो ए को काट दें, दोबारा उसको कंसिडर ना करवाएं। आखिर में हो सकता है 2 या 3 रह जाएं, तो फिर बार बार अगर आप पढ़ना भी है तो सिर्फ उनको पढ़ें, ताकि बार बार एक गलत ऑप्शन पे पढ़ के फिर उसे रिजेक्ट करना, इसके भी 10-15 सेकंड आप जाया ना करें। कॉन्टेक्स्ट आपको क्लूज दे रहा हो, तो मेरा ख्याल है आज के लेक्चर में मैंने ज्यादातर फोकस इसी चीज पे किया कि आप कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं। पहले स्लो रीडिंग से रीडिंग अपनी इंप्रूव करें और फिर जो क्वांटिटी ऑफ रीडिंग है उसको बढ़ाएं, तो इवेंचुअली आप कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक्टिवली रीड करेंगे कि आगे क्या आने वाला है, इस बात का क्या मतलब है, इस बात को हो सकता है वो रेफर बैक करे, तो वो आपको आता है। हाउ यू शुड प्लान योर प्रिपरेशन, अगर आपके पास 2 महीने अवेलेबल है तो आई वुड सजेस्ट कि पहले 15 दिन आप जनरल सॉरी पहले जो 1 महीना है उसमें आपके जितने भी सेक्शन क्वेश्चन टाइप्स हैं उसकी आप प्रैक्टिस करें और डिफरेंट रीडिंग्स करें, डिफरेंट कंप्लीशन पैसेजेस करें, और इसके अलावा जो बुक्स और रिसोर्सेज, वो मैं स्लाइड शायद भूल गया हूँ, वो ये है कि आपके बैरन्स की बुक है, बैरन्स GRE बुक आती है, लेटेस्ट वर्जन ले लें तो भी ठीक है, थोड़ा सा पुराना वर्जन लेंगे तो भी चलेगा। आई बिलीव
कि असल चीज उस रिसोर्स में वो ये है, किसी भी और बुक में भी, कि आपको जो डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शंस ऑफ आंसर्स हैं कि कोई आंसर क्यों गलत है, उसमें क्लियरली लिखा होगा बैलेंस में कि बी और सी गलत हैं तो क्यों गलत है, उस पर फोकस जरूर करें। और क्यों करेक्ट है जो ऑप्शन, उस पर भी जरूर पढ़ें। सो प्रैक्टिस उसमें से बहुत ज्यादा करें, सारे क्वेश्चन टाइप्स आप कवर करें। इसके अलावा मैनहट्टन के क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा 5 पाउंड्स की बुक्स आती हैं, वो भी बड़ी अच्छी हैं। और ईटीएस की अपनी एक गाइड आती है, वो भी अच्छी है। कैप्लन की बुक्स भी ठीक हैं, आई पर्सनली डोंट लाइक इट दैट मच। बैरन्स आई वुड हाईली रिकमेंड। ऑनलाइन रिसोर्सेज में कोशिश करें अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। मगूश की एप्स स्टैंडर्डाइज्ड हैं, हो सकता है कुछ और भी हैं, लेकिन जब तक आपको पता चले कि ये कहीं डिफिकल्टी लेवल जानबूझ के डिफिकल्ट बनाया गया है या बहुत आसान चल रहा हो, तो आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो सकती हैं बाद में। सो मगूश के अलावा मुझे जाती तौर पे बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं है जो अनपेड वर्जन हैं। पेड वर्जन में हो सकता है आपको मिले। सो दिस इज हाउ यू शुड बी प्लानिंग। के पहला महीना आप ज्यादा से ज्यादा जंप इन करें, बहुत ज्यादा टाइम लगाएं, 30 मिनट 40 मिनट एक एक क्वेश्चन पे भी लगाना पड़ता है, जहां पे आपके डाउट्स जब तक क्लियर नहीं होते लगाएं। नेक्स्ट जो आपका दूसरा महीना है, उसके पहले 15 दिन में आप टाइम बाउंड टेस्ट बहुत ज्यादा करना शुरू कर दें, और 1.5 महीने तक अपने आप को एक सफिशिएंट फीलिंग दे दें। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें। रीडिंग स्किल्स, जनरल राइटिंग, जनरल वर्बल स्किल्स आप लोगों के जो डेवलप हुए होते हैं पिछले 8 साल, 10 साल, 12 साल में, वो कुछ सडनली इंप्रूव नहीं हो सकते एक टेस्ट की तैयारी से। यू कैन नॉट क्रैक दिस टेस्ट इजीली। लेकिन क्वेश्चंस की फेमिलियरिटी होना, टाइम मैनेजमेंट होना, किस तरह के क्वेश्चन टाइप्स आते हैं उसकी तरह की प्रैक्टिस करते रहने से आप कुछ पॉइंट्स ऊपर कर जाते। और एक लास्ट आपको मैं कॉन्फिडेंस वाली बात बताऊं, देखिए 40 का बैंड है, 130 से 170। आप समझे आप 40 लोग हैं और किसी ने 130 लिया, किसी ने 131, 132, 169, 170 तक भी ले लिया। एक एक आप समझे, अब आप 40,000 हैं, हर स्कोर पे आप एक एक हजार बंदे को बीट कर रहे हैं। तो इट्स नॉट जस्ट वन स्कोर। अगर सब स्कोर सबने बराबर ली हो, और ये भी मैं आपको बात बताऊं, 140 सॉरी 130 से 170 में बेसिकली आप देखें जो बहुत ही ज्यादा वीक स्टूडेंट होगा, देखिए $220 $205 आपको देने पड़ते हैं, तो बहुत ज्यादा अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट तो नहीं आएगा कि 130 के बैंड वाला हो और वो आप अटेम्प्ट कर रहा हो। मोस्ट लाइकली वो 135, 136, 137 तो क्रॉस करेगा। और जो बहुत ज्यादा थीटे होंगे, चले 167, 168, वो हो सकता है आप भी उनमें से हो, लेकिन वो बहुत कम है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक्चुअल फाइट चल रही है वो 137 से 167, 30 नंबर के बैंड में आप लाखों लोगों को बीट करना चाह रहे हैं या उनसे, तो एक एक स्कोर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 से 3 स्कोर आप टेस्ट फेमिलियरिटी, क्वेश्चन टाइप फेमिलियरिटी से 4 एक स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करने से 2 3 4 पॉइंट्स तक आप कर सकते हैं। अगर आप कैजुअल अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को, तो इस चीज की इंप्रूवमेंट के मजीद आप 2 3 मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आज मैं आपसे टेस्ट लूं और आपकी रीडिंग एबिलिटी 140 के बराबर हो और आप 2 महीने प्रैक्टिस करें ब्लाइंडली बहुत हैवी, तो आपको 170 पे पहुंच जाएंगे, आई डाउट दैट। ठीक है, तो आप अपने स्किल्स जो असेस हो रहे हैं जीआरई वर्बल में, उनको बिल्कुल अपबीट नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रैक्टिस से, ये जो कैजुअल मिस्टेक्स हैं, वोकेबलरी इंप्रूव करने से, टेस्ट अप्रीहेंशन से, रीडिंग की ओवरऑल सेंस बनाने से आप अपने पॉइंट्स को इंक्रीमेंट दे सकते हैं। सो नाउ इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, तो आई एम हियर, प्लीज लेट मी नो। प्रैक्टिस रिसोर्सेज बैरन्स की जीआरई बुक है, मैं हाईली रिकमेंड उसको करता हूँ। इसके अलावा आपके पास मैनहट्टन रिव्यू है, वो भी अच्छी है। इसके अलावा 5 पाउंड्स जीआरई है, और भी बहुत सी बुक्स हैं। आई वुड सजेस्ट लिंकन कॉर्नर्स हैं यूएसईएफपी के, यूएस एम्बेसीज के, उनमें बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं, क्योंकि 3 3 4 4 हज़ार की वो बुक्स होती हैं। पहले आप देख लें व्हाट सूट्स यू, किसकी डिस्क्रिप्शन आपको ज्यादा अपीलिंग लगती है, वहां से आप करें। मेमोराइज ना करें वर्ड्स, ये वर्ड्स वोकेबलरी के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि लिटरली जिस तरह वो कहते हैं ना, रात को सोने से पहले दवाई, 10 वर्ड्स करें, 5 वर्ड्स करें, आज से शुरू करें, 5 करें, फिर 15 दिन बाद उसको 10 पे ले जाएं, फिर 15 दिन बाद उसको 20 पे ले जाएं, एक अलग बात है। लेकिन वो वर्ड्स किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुए थे वो देखें, उनको विजुअलाइज करने की कोशिश करें, रेलेवेंट सेंटेंसेस पढ़ें, डायरी बनाएं उसकी, और सोते हुए उन वर्ड्स को जरूर याद कर लें। और हफ्ते बाद या 5 दिन का एक रेगुलर साइकिल लगाएं कि जो पिछले दिन वर्ड्स किए थे उनको आपने रिमेम्बर करने के लिए वापस करना है। बिकॉज वर्ड्स एक दिन याद हो जाते हैं, दूसरे दिन तक, तीसरे दिन तक रहते हैं, लेकिन 80% ऑफ दोज इवेड योर माइंड। तो जब तक आपने किसी कॉन्टेक्स्ट से उठा के वर्ड्स ना पढ़े हो, वो रिटेन नहीं होते। रीडिंग इज द बेस्ट
resource for that. जी बताएं. Any for the GRE, where can you find the relevant books? Books आपको मार्केट से मिल जाती हैं. मैं आपको रिकमेंड करूंगा निकन कॉर्नर या लाइब्रेरीज में जाके पहले बुक्स देख लें. विच वन सूट्स यू बेटर वो आप कर लें. अदरवाइज बैरन्स ले लें. वोकेबलरी के लिए आई वुड से वर्ड स्मार्ट. वर्ड स्मार्ट इज अ वेरी गुड रिसोर्स अगर आप वोकेबलरी को बहुत अच्छे तरीके से करना चाह रहे हैं. तो वर्ड स्मार्ट 1 और 2, और अब उन्होंने शायद सुपर वर्ड स्मार्ट के नाम से दोनों को कंबाइन किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं. यूट्यूब चैनल से मुझे बोल रहा है ई टू के नाम से एक आता है, वो भी आई एम नॉट श्योर. मैं भूल रहा हूँ. बट देखें, ये मुझसे ना पूछें, आप लोग मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं इन चीजों में. रैंकिंग देखें कितनी ज्यादा है, कितने कम टाइम में उनको ज्यादा लाइक्स मिल गए हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, उस हिसाब से आप चलें. और किसी का लर्निंग स्टाइल आपको ज्यादा हो सकता है अपील करे, किसी और को कम करे. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ओन प्रेफरेंसेस. मॉक टेस्ट आपको, जो आप बुक्स लेते हैं अगर नई आप लें तो उसमें मिल जाता है सीडी रोम के थ्रू या किसी और तरह से. और जब आप रजिस्टर करवा लेते हैं तो 2 टेस्ट आपको ईटीएस वाले खुद अलाउ करते हैं. इसके अलावा जब आप रजिस्टर कर लेते हैं तो यूएसईएफपी वाले 500 या आप शायद 1000 हो, वो लेके आपको एक मॉक टेस्ट करने देते हैं. तो वो आप जरूर अटेम्प्ट करें. आई वुड हाईली रिकमेंड दैट. ऐप का मुझे नहीं पता. वर्ड स्मार्ट की ऐप होगी लेकिन पेड होगी, आप जरूर देख लें. बाकी क्वेश्चन सिमिलर तरह के आ रहे हैं. सिंस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई वुड रिक्वेस्ट the USEFP team to please take over. Hi everyone, thank you for hosting today's session, Zulfiqar. Zulfiqar, do you have anything else you would like to answer or cover, or are you good to go? You're muted, I think. Yeah, so let me see if there are more questions which are not covered yet. क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वर्बल तक ही फोकस करें. जनरल जीआरई जो है वो बहुत एक्सपेंडेड टॉपिक है. मैंने कोशिश की है कुछ हद तक कवर करूं. And बट this question's appeared for a few times. Someone's asking, a section has how many RC, text completion, and sentence equivalence questions? अच्छा. In other words, what will be the distributions of questions? Okay. That's a good question. Thank you for bringing it up for all of us. देखें, जीआरई वाले क्लियरली ये कहते हैं कि वी हैव नो डिमार्केशन. ठीक है, तो they can distribute it anywhere. However, from the previous text patterns, we can clearly see a pattern. Reading comprehension के 50% क्वेश्चंस होते हैं. सो अगर आपके 10 क्वेश्चंस में से देर इज अ गुड लाइकलीहुड के 5 रीडिंग कंप्रीहेंशन के होंगे और उसमें कोई एक पैसेज पैराग्राफ का पैसेज होगा, कोई 5 का होगा. बाकी 2 में ऑलमोस्ट 50-50 स्प्लिट होता है. रीडिंग कंप्रीहेंशन के बाद 25 to 30% आपका कवर होता है टेक्स्ट कंप्लीशन, और उसके बाद सेंटेंस इक्विवेलेंस पे 20 to 25% का फोकस होता है. सो आई वुड सजेस्ट कि देखें, ऑल ऑफ दिस, all these are questions which will become irrelevant. All you need to do is read, and then read for the purposes of practice. लेकिन जनरल रीडिंग पहले बढ़ाएं, उसके अंदर वोकेबलरी बढ़ाएं, एक्टिव कॉन्टेक्स्ट वो रखें, और फिर टेस्ट बेस्ड प्रैक्टिस जब आप करेंगे अच्छी रिसोर्सेज से तो वो आपकी बनती जाएगी. सो क्वेश्चन टाइप्स किसी भी तरह के आए, मैंने जहां तक अंदाजा लगाया कि आप रीडिंग से जितना ज्यादा इंगेज इफेक्टिवली हो सकते हैं, जो कहा जा रहा है वही समझ सकते हैं, और जीआरई की स्ट्रिक्ट को समझ सकते हैं कि वो कंफ्यूजन पर्पस से बिल्कुल नॉट लगा के, अदरवाइज लगा के रिवर्स कर देता है स्टेटमेंट को जब तक आपकी कंप्रीहेंशन उसको वो करे. तो कंप्रीहेंशन अपनी उसके बारे में बढ़ाएं. ऑल दीज सेक्शंस विल बिकम सिमिलर टू यू इवेंचुअली. The next question is, how many questions in total in the GRE section, verbal GRE? नया सेक्शन आया है. आप जो लोग अगर पुरानी प्रैक्टिस करते जा रहे थे तो उनके लिए कंफ्यूजन हो सकती है. अदरवाइज ईटीएस की वेबसाइट पे सारी चीजें डिटेल में अवेलेबल हैं. 2 सेक्शंस हैं वर्बल के. सेक्शन 1 में आपके 12 क्वेश्चंस हैं जिनके लिए 18 मिनट्स, सो 1.5 क्वेश्चंस, एंड देन 15 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेक्शन, जो कि आएंगे आपकी परफॉर्मेंस पहले सेक्शन पे कैसी थी उस हिसाब से, लेकिन क्वेश्चंस फिक्स होंगे विच इज 15 क्वेश्चंस. Correct.
Okay, and a few people are also asking how can they improve their reading skills? What sort of content should they be reading right now? आई वुड सजेस्ट के नेशनल ज्योग्राफिक के पुराने मैगजीन्स मिल रहे होते हैं, इकोनॉमिस्ट के मैगजीन्स मिल रहे होते हैं, उसमें जो सोशल साइंसेस के टॉपिक्स हैं, ह्यूमैनिटीज के टॉपिक्स हैं, वो आप पढ़ें। आई वुड हाईली रिकमेंड यू, मतलब मैं अपने आप को एक बहुत मेरा पुराना बैचमेट था, उसकी एग्जांपल बता, वो इकोनॉमिस्ट के पेज पे 3 दिन 4 दिन लगाता था एक आर्टिकल पे। पैराग्राफ कैसे शुरू हुआ, पहले शुरू करता था डिफिकल्ट वर्ड्स, उसके बाद वो उसका फ्लो देखता था सारे पैराग्राफ में, फिर विद इन अ पैराग्राफ कैसे फ्लो बिल्ड हुआ है। तो ये जीआरई के लिए नहीं है, मैं जनरल रीडिंग की आपको बता रहा हूँ। दिस इज हाउ यू एस हाउ अ राइट रिटन मटेरियल इज प्रॉपरली डिवाइज्ड। जब आपकी एबिलिटी वो डिवाइस हो जाती है कि यू कैन सी के वेयर द ऑथर इज कमिंग फ्रॉम, किस तरह बात शुरू करता है। आपने आर्टिकल पढ़ लिया, आपको उसका एंड पर्पस समझ आ गया, उसका जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो आपको भी क्लियर हो गया एज अ रीडर। नाउ स्टार्ट लुकिंग बैक, बूट करें कि पहला पैराग्राफ कैसे लिखा उसने, उसी बात को जो कि आपको पता चल गई है कि उसने क्या प्रूव करना है टुवर्ड्स द एंड, और फिर उसको बिल्ड करने के लिए सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स क्या दिए, कब एग्जांपल्स यूज की, कब। सो ऑल ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट बाय डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड देन, अगर आपकी उन चीजों में एबिलिटी इतनी नहीं इमीडिएटली बनती, आई वुड सजेस्ट कि डैन ब्राउन या किसी और तरह के जो भी आपको नॉवेल्स पसंद है वो पढ़ें, और कोशिश करें कि हर दफा आधा घंटा जो आप उसमें लगा रहे हैं उसमें से कम 7 8 वर्ड 10 वर्ड्स आप निकाल के फिर उठें, अंडरलाइन करें। बुक्स हार्ड कॉपी आई वुड प्रेफर यूज करें, लेकिन एनीथिंग दैट सूट्स। And some people are asking, will the new book have the updated format? Because the updated format just went in this नहीं, September. अपडेटेड पे नहीं बना, देखें इट्स देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि क्वेश्चन टाइप्स और अप्रोचेस सब वही हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हुए हैं। उसके लिए जो आपकी फुल फ्लेज टेस्ट प्रैक्टिस है वो तो फर्क पड़ सकती है, लेकिन इंडिविजुअली फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होंगे एज कम्पेयर टू जितने आपको एक्चुअली अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। सो दैट रियली डजंट मैटर। Lastly, so I think rest of the questions are similar to what's already been answered. This one is about the analytical section. One in GRE analytical. Which one is, I'm confused what they're asking. Which one is argument or issue? I'm a bit confused. इश्यू एनालिसिस का क्वेश्चन रह गया है, इसके अलावा जो आर्गुमेंटेशन वाला है वो छोड़ दिया। इश्यू एनालिसिस ये है कि आपके पास एक फ्रेज, एक 2 लाइनों का 3 लाइनों का एक सेंटेंस आएगा, उसको आपने खुद से एनालाइज कर। पहले होता था एक आर्ग्यूमेंट होता था, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी हायर एजुकेशन इज लेस इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू प्राइमरी एजुकेशन, सो आई एम गिविंग माई आर्ग्यूमेंट्स, वो एक पैसेज होता था उसके अंदर, लेकिन मेरी रीजनिंग वीक हो सकती थी, बात मैं कुछ करना चाह रहा हूं लेकिन मैं कंक्लूजन किसी तरफ लेके जा रहा हूं, तो वो एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड करता था। उस आर्ग्यूमेंट को आपने हिट करना होता था कि ये कहाँ गलत है और कहाँ पे सही है। अब वो सेक्शन नहीं है, आपने इश्यू एनालिसिस ही करना है। लेट से ये स्टेटमेंट आती है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जब आप कहें कि लेट से हायर एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, डजंट मैटर। अगर आप कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन है, डजंट मैटर, लेकिन बिल्ड आप कैसे करते हैं। तो इश्यू एनालिसिस ये है कि जिस इशू पे आप अपना एक ओपिनियन देने जा रहे हैं, क्या आप उसको सपोर्ट करने के लिए जो उसमें रिगर रिक्वायर्ड है, मतलब एक जज को आपने कन्विंस करना है 6 जुमलों में 10 जुमलों में, आर यू एबल टू डू इट इफेक्टिवली, या सिर्फ आप ये कह रहे नहीं अच्छा है प्राइमरी एजुकेशन ज्यादा अच्छा है, प्राइमरी एजुकेशन अच्छा है, हायर एजुकेशन तो बाद में आता है, हायर एजुकेशन तो बाद में आता है, डजंट मेक सेंस। आप उस इश्यू को किस तरह से अप्रोच करते हैं, दैट्स ऑल इज बीइंग टेस्टेड। नो मोर आर्गुमेंटेटिव एसेस इन दिस न्यू फॉर्मेट। Perfect. And one last question we can take because everything else we've answered. Is the updated GRE more complex than the old one? मच सिंपलर। देखें, टेस्ट पैटर्न बदला है, आपके क्वेश्चन टाइप्स वही हैं, रिगर वही रिक्वायर्ड है, डिफिकल्टी लेवल उसी तरह का है, सेंटेंसेस की अल्टरनेटिंग सेक्शंस की वो सिंपल हो गया। 2 राइटिंग के बजाय 1 राइटिंग है, इसका मतलब है कि आप एग्जॉस्ट नहीं होंगे तब तक जब तक आप अपने असल सेक्शंस में आएंगे। छोटे छोटे वो सेक्शंस हैं, so it's much easier, your tension should be released, there is absolutely nothing to worry more about. So thank you so much, Zulfiqar. I think this session was very helpful. Thank you once again for doing this. Thank you so much, And man. Zulfiqar, just like last time, if you could, if you're comfortable with students reaching out to you via email, if you could just put it in the chat box. यार चैट बॉक्स इनेबल्ड है? Yes, for you it's enabled. Yes.
Okay, I'm sharing my email ID. I am not promising कि मैं सबको respond कर सकूंगा, लेकिन please reach out if you have any specific questions. I'll try to, but no promises क्योंकि कभी-कभी ज़्यादा हो जाती हैं. So, Thank you everybody for joining our session today. I hope this has been helpful and informative for you. And for any future sessions, please keep logging back onto our website, educationusa.pk/upcoming events. Over there, you will be able to see all the upcoming future GRE events. Some will also be in person, and also sessions about statement of purpose will also be happening, and the Fulbright journey. And as of yesterday, Fulbright was also announced. The deadline for Fulbright this year will be February 28th, 2024. So please go on usefp.org and read up about all the new requirements for Fulbright. And lastly, please follow us on our social media pages, USEFP and Education USA Pakistan. The handles are the same on all social media platforms, and this session will also be available on the USEFP Facebook and YouTube page. And if you have any other questions, feel free to reach out to your Education USA advisors. I hope everybody has a good evening, and once again, thank you so much, Zulfiqar. Have a good day, everybody. Tafis.